اس ناول کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ فصیحہ کا نہ آنے کا فیصلہ کتنا درست تھا۔ خالہ جان کی بیٹیوں کا پرغرور انداز دیبا کے لیے کوفت کا احساس بن رہا تھا۔ شبانہ باجی خواہ خواہی ان کے ساتھ ساتھ لگی پھر رہی تھیں۔ بچپن کی مانگ ہے شبانہ۔ سعیدہ بیگم نزہت بھابھی کی والدہ کو متاثر کر رہی تھیں کہ اس شاندار گھر کی اگلی حقدار ان کی بیٹی ہے۔ بچپن میں ہی آپا نے نہال سے بات طے کر دی تھی۔ دیبا نے ان لوگوں کی نگاہوں میں واضح طور پر حیرت کی لہر دوڑتے ہوئے دیکھی، لیکن نزہت باجی تو کہہ رہی تھی کہ تہمینہ کے بے اختیار بول پڑنے پر نادرہ اور اس کی امی فوراً ہی بوکھلا گئیں۔ وہ اور بات تھی، تم بیچ میں مت بولا کرو۔ خالہ جان کے گھر سے خاصا آگے آنے کے بعد ان کے ڈرائیور نے خالی ٹیکسی کو روکا۔ وہ لوگ کچھ سمجھ نہیں پائیں۔ بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ آگے سے آپ لوگوں کو ٹیکسی کرا دوں، اب آپ اس میں بیٹھ جائیں۔ شبانہ کی طرف کا دروازہ کھول کر اس نے مودبانہ طریقے سے انہیں حکم دیا۔ شبانہ نے پلٹ کر اماں اور دیپا کو دیکھا، لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے اتر گئی۔ بات شاید اتنی بڑی نہیں تھی، مگر خالہ جان اور ان کے گھر والوں کے ابھی کچھ دیر پہلے ملاحظہ کیے جانے والے رویے کے تناظر میں بہت ہتک آمیز لگی۔ راستہ بھر تینوں میں سے کسی نے بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا، حتیٰ کہ اماں نے بھی۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ بہت ہی پیارا سا ناول آپ کے لیے، جس کا نام ہے زرد گلابوں کی خوشبو۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں، اس خوبصورت سے ناول کی شروعات کرتے ہیں۔ اماں انور بھائی آ گئے۔ بیرونی برآمدے میں کھڑی فصیحہ نے چلا کر اتنے اشتیاق سے اہل خانہ کو بتایا گویا آج کے دن کی سب سے خوش کن خبر یہی ہو۔ پھر میں کیا کروں؟ پھولوں کی پتیاں برساؤں، سلامی پیش کروں، کھڑا تو ہے استقبال کو وہ بے وقوف گھنٹے بھر سے۔ سعیدہ بیگم کا رد عمل دیبا کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ اس نے کھڑکی سے یوں ہی جھانکا تو نگاہیں برآمدے اور سیڑھیوں کو پار کرتی کمپاؤنڈ میں رکے رکشے پر ٹھہر گئی۔ گرے سے کلر کی شلوار قمیض جو کثرت استعمال سے اپنی اصل رنگت کھو چکی تھی۔ انور بدر بھائی کی مدد سے اپنا سامان اتار چکا تھا۔ کالے رنگ کے بڑے بیگ میں ذاتی استعمال کی اشیاء سے زیادہ یقیناً کتابیں تھیں، کیونکہ ات کھلی زپ سے کئی ایک باہر جھانک رہی تھیں۔ رکشہ والے کو کرایہ ادا کرنے میں بدر بھائی نے بڑی پھرتی دکھائی۔ انور کے اصرار کے باوجود انہوں نے اس کا نوٹ تھاما ہوا ہاتھ واپس اس کی جیب میں رکھ دیا تھا۔ اگر جو اماں یہ منظر دیکھیں تو ان کی ناراضگی میں کتنا اضافہ ہو جائے۔ دیبا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ رکشہ اب لکڑی کے پرانے گیٹ سے باہر جا چکا تھا اور بدر بھائی انور کے ساتھ بغلی کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ انور کے جذبات کا تو وہ اندازہ نہیں کر سکی کیونکہ اس کا سر جھکا ہوا تھا، مگر بدر بھائی کے چہرے پر کھلی مسکراہٹ ان کی حقیقی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ ایسی اولاد چھوڑی ہے، مجال ہے جو کبھی ماں کا کہا سن لے، جو ان کے دل میں سما جائے وہی کرنا ہے۔ سعیدہ بیگم کرسی پر بیٹھی اب مرحوم شوہر سے شکوہ کرنا تھیں۔ اپنا گھر سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، انہیں یاری سنبھالنے کا چسکا ہے۔ مہمانداری کرنا آسان ہے کیا آج کل کے زمانے میں؟ مگر اس لڑکے کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے سوائے اس انور کے۔ دیبا کو ان کی کہی گئی باتوں سے کلی طور پر اتفاق نہیں تھا تو آخری جملوں کی سچائی سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بدر بھائی نافرمان یا بے حس ہرگز بھی نہیں کہے جا سکتے تھے۔ ابا کی وفات کے بعد بڑی نوعمری میں ہی کسی سرکاری آفس میں ایک چھوٹی موٹی نوکری پکڑ چکے تھے، جو اتنے سالوں کے بعد گزارے لائق اور بتانے لائق ہو ہی چکی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اتنی مہنگائی کے دور میں مہینہ گزارنا گھر والوں کو لوہے کے چنے چبوا دینا تھا۔ اماں کے بیان کا آخری حصہ حرف بحرف سچا تھا، اس کی تو وہ گواہی دے سکتی تھی۔ انور سے بدر بھائی کی دوستی کو زیادہ پرانی نہیں تھی۔ 3 سال پہلے اپنے چچا کے کسی کام سے وہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا۔ بار بار کے چکر لگانے میں وہ کام تو معلوم نہیں ہو سکا کہ نہیں، بدر بھائی کی شکل میں اسے زندگی بھر کے لیے انتہائی مخلص دوست مل گیا۔ ادھر بدر بھائی جو زندگی بھر دوستیاں پالنے کی علت سے محفوظ رہے تھے، یہ کہیے کہ ان کے حالات نے ایسی کسی عیاشی کی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ سنجیدہ آنکھوں اور سانولی رنگت والے اس نوجوان کی اتنے گرویدہ ہوئے کہ وہ دن اور آج کا دن گھر کے دور و دیوار انور کا ذکر تواتر سے سنے جا رہے تھے۔ دیبا ذرا چائے تو بنا دو اچھی سی۔ بدر بھائی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ کھانا تو تیار ہے نا؟ انور اتنی جلدی دوپہر کا کھانا کھاتا نہیں ہے، آج تو ویسے بھی چھٹی کا دن ہے۔ سعیدہ بیگم ان کے جوش و خروش کو بڑی کاٹ دار نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کی وہ مطلق پرواہ نہیں کر رہے تھے۔
दीबा इनका मूड अच्छी तरह पहचान गई थी, इसलिए तामील इरशाद के लिए फ़ौरन ही उठ खड़ी हुई। इधर से मुतमईन होने के बाद फसीहा की तरह मुतवज्जा हुए, जो बड़े सब्र से उनकी बात ख़त्म होने के इंतज़ार में थी। बेबी तुम? बदर भैया, अनवर भाई मेरे लिए रिसाले लाए हैं, पिछली बार वादा करके गए थे। फसीहा जो मैट्रिक में आ जाने के बाद भी घर वालों के लिए बेबी ही थी, अब मज़ीद खामोश नहीं रह सकती थी। लाया होगा भाई, अभी तो आया है, क्या आती निकाल कर दे देता, इतनी बड़ी हो गई हो, बिल्कुल अकल नहीं। उनके घर में ये अच्छा रिवाज था, हर शख्स दूसरे की अक्ल दानिश पे शुबा करने में ज़रा देर नहीं लगाता था। तुम ज़रा शीशे के जग में पानी भरकर वहाँ कमरे में तो रखाओ। फसीहा के माथे पर पड़ते बल उनके इतना कहने पर ही गायब हो गए। बदर भाई का क्लियरेंस मिलते ही इसने बाहर की जानिब दौड़ लगाई। अब अनवर भाई से वो खुद पूछ लेगी, अगर वो लाए होंगे तो उनके बैग से निकलवा भी लाएगी। बदर भाई को चाय लेकर आने में चंद मिनट तो ज़रूर लग ही जाएंगे। फसीहा और बेबी को बच्चों के रसाइल पढ़ने की ज़बरदस्त चाट पड़ चुकी थी। बदर भाई से हर महीना एक रिसाला दिलाया करते थे, जो इसके लिए कतई नाकाफ़ी था। चंद घंटे गुजरते और रिसाला ख़त्म। अनवर की इस घर में आमदरफ्त के बाद कम अज़ कम फसीहा को बहुत फ़ायदा पहुंचा था। इसके शौक़ को जिला बख्शने वाला भी वही था। अनवर से बहुत जल्द फ्री हो गई थी, चंद साल पहले जब वो पहली बार बदर भाई के साथ उनके घर आया। इस वक्त वो वाकई छोटी सी थी, छठी या शायद 7वीं क्लास में। पहली मुलाकात में कायम होने वाली बेतकल्लुफ़ी में वो इसे अपने शौक़ के मुतालिक बताना नहीं भूली थी, और अनवर ने इसके इस मासूमाना शौक़ को मद्देनज़र रखते पुराने रसाइल के ठेलों से बच्चों के कई रिसाले से लेकर देने शुरू कर दिए थे। भाई एक वक्त इतने बहुत से रिसाले देखकर वो जितना खुश हुई थी, इस मंज़र से अनवर को बड़ी तमानियत हुई। इतना ख्याल वो ख़ुद रखता था कि रसाइल की तादाद और तरसील इतनी हो जितनी फसीहा को दरसी किताबों से दूर ना कर पाए। ये शुबाना कहाँ है, सुबह से नज़र नहीं आ रही है? बदर भाई ने अम्मा की तरफ देखा, जो हल्की सी धूप में कुर्सी खींच कर बैठी हुई थी। किसी ज़माने में यकीनन हसीन रही हूँ, अब भी रंगत में गुलाबीपन मौजूद था। क्यों, अब कौन सी खिदमत बाकी रह गई है अनवर की, जो इसके स्पुर्द करनी है? कमाल करती हैं आप भी, ऐसे ही पूछा था मैं तो। इसकी बात अधूरी रह गई। शुबाना कमरे में दाखिल हो रही थी। दीबा प्लीज़ मेरे लिए एक चाय का कप तो लाना। मुंह पे हाथ रखकर जमाई रोकते हुए वो दीवान पर ढेर हो गई। इतनी देर तक मत सोया करो, जल्दी उठने से आदमी फ्रेश रहता है। टाइम देखो, 12:30 से ऊपर हो रहा है। बदर भाई ने बहन को सजनिश की। क्या करूं बदर भाई, रात को इतनी देर हो जाती है सोने में कि सुबह उठने को दिल ही नहीं चाहता। ये चाय ले जाएं आप। दीबा चाय की ट्रे लिए दरवाजे में ही खड़ी थी। बदर भाई जल्दी से बाहर निकल आए। एक कप शुबाना के लिए उठाकर वो कमरे में चली आई। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम वाकई बहुत अच्छी हो दीबा। शुबाना चाय लेते हुए मुस्कुराई। आज तो बड़ा ज़बरदस्त खाना पक्का होगा। आखिर भाई के जिगरी दोस्त आए हैं। दीबा जवाबन मुस्कुराई और सईदा बेगम की तरह मुड़ते हुए बोली, अम्मा अगर आपको भूख हो तो आपके लिए खाना निकाल लाऊं? इसे मालूम था कि इन्हें जल्दी खाना खा लेने की आदत है। नहीं रहने दो, अब तो पहले तुम्हारे भाई के मेहमान खाया करेंगे, हमारा क्या है। दीबा ने संजीदा नज़रों से माँ की तरफ देखा। उनकी खफकी अभी न जाने कितने दिन चलना थी, फिर भी वो इन्हें समझाने से ख़ुद को बाज नहीं रख सकी। अम्मा ऐसा क्यों कह रही हैं? मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं। अब खुदा न खास्ता हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि एक शख्स को चंद दिन अपने घर ठहरा भी ना सकें। ना, तुम्हारा बाप तो बड़ी वसी जायदाद छोड़ गया है ये चौंचले पूरे करने के लिए। खुद ज़िंदगी भर दोस्तों से बैठक आबाद किए रखी, नतीजा क्या निकला? चेहलम की दावत खाकर किसी ने पलट कर देखा तक नहीं कि जिगरी दोस्त के बच्चे किस हाल में हैं। दीबा ने उनके लहजे में छुपे दुख को अपने दिल में जज्ब होते महसूस किया। गलत नहीं कह रही थी। अब्बा मरहूम बहुत यारबाश इंसान थे। हाथ और दस्तरखान हमेशा खुला रखा था। कल की फ़िक्र ना खुद की ना बीवी को करनी थी। उनकी सादत का नतीजा उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद बरसों तकलीफ़ें उठाकर सईदा बेगम ने भुगता था, बल्कि किसी हद तक अब भी भुगत ही रही थी। अम्मा मैं बदर भाई के ख्याल से कह रही हूँ, बेचारे हम सब के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कोई शौक़ कोई बेजा खर्च की आदत नहीं है। अगर इन्हें अनवर की दोस्ती में खुशी हासिल होती है तो हमें भी उनकी खुशी की खातिर खुश दिली से उसका स्वागत कर लेना चाहिए। सईदा बेगम ने कदर हैरत से अपनी बेटी को देखा। आमतौर पर इतनी लंबी बात करने की आदी नहीं थी। ठहरे हुए लहजे में बात करने वाली लड़की इस समय खासी बोलबार महसूस हो रही थी। इन्हें इस पर बेसाख्ता प्यार आ गया। इसके माथे पर आई बालों के लटों को हाथ से समेटते मुस्कुराती। दीबा के दिल पर से बोझ सा हट गया।
मगर ऐसा शायद सिर्फ पल भर के लिए था। कोई एहसान नहीं करते बदर भाई, ज़माने भर के लड़के नौकरियां ही करते हैं, अपने घरों को संभालते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से संभालते हैं। शुबाना चाय का कप खाली करते हुए देख किसी की तरफ रही थी। सुना यकीनन अम्मा को रही थी। बाजी प्लीज़। दीबा ने बेबसी से इसे देखा। गलत तो नहीं कह रही, छोटी छोटी चीज़ों के लिए महीनों तरसना पड़ता है, दिल मार कर बैठे रहते हैं, ये भी कोई ज़िंदगी है। आसपास रहने वालों से मुकाबला करो तो अपने आप पर शर्म से आने लगती है। खैर बाजी, ऐसा तो ना कहें। फसीहा जो 4-6 रिसाले अनवर के बैग से निकलवा लाई थी और अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश नज़र आ रही थी, शुबाना के इस दर्द भरे बयान पर ज़र्रा बराबर मुतासिर नज़र नहीं आ रही थी। आपको तो निहाल भाई ढेरों शॉपिंग करा देते हैं हर महीने। अभी पिछले हफ्ते जो 2 बैग भर कर लाई थी, आती अपनी अलमारी में लॉक कर दिए थे, हवा भी नहीं लगाई किसी को। तो तुम क्यों जलती हो? निहाल अपनी खुशी से इसरार कर कर के दिलाते हैं, तुम एतराज़ करने वाली कौन हो? दीबा ने तासुब से शुबाना को देखा, जो तीनों बहनों में बड़ी ज़रूर थी, मगर सिर्फ उम्र में। तबीयत का बड़ापन इसे छूकर भी नहीं गुजरा था। अपने से कहीं छोटी बहन के रोज़ाना मुँह लगकर वो अपना सारा एहतराम खोती जा रही थी। मैं एतराज़ नहीं कर रही। जब बदर भैया और अम्मा को एतराज़ नहीं, मैं भला किस गिनती में हूँ? सुन रही हैं अम्मा, इस बेबी की ज़ुबान दराज़ी आपको भी? शुबाना की आवाज़ अब बुलंद होती जा रही थी। दीबा घबरा कर बाहर निकल आई। इस तरह की बहस हमेशा इनके यहाँ खासी संजीदा नाराज़गी पर ख़त्म होती थी। अब एक दूसरे पर एतराज़ात की खासी तवील बौछार के बाद शुबाना बाजी आंखों में आंसू भरते अपने कमरे में कैद हो जाएंगी, जहाँ से हज़ारों मिन्नत और खुश आमदों के बाद दीबा को ही इन्हें बरामद करना पड़ेगा। और अगर कहीं खुशकिस्मती से इस दौरान निहाल भाई का उनके घर चक्कर लग गया तो दीबा के लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा। शहर की किसी मशहूर दुकान पर चलने वाली रियायती सेल की इत्तला देते वो इनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देंगे और कुछ ही देर में ऊपरी दिल से मना करती बज़ाहिर मजबूरन शुबाना बाजी उनके साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाएंगी। खाना तो बिल्कुल तैयार था, मगर वो यूं ही बावर्ची खाना में पड़े स्टूल पर बैठ गई। इस तरह के हंगामों से इसकी तबीयत बहुत घबराती थी, इसलिए वहाँ से हट जाने में ही आफियत समझी थी। शायद आध घंटा गुजरा होगा कि इससे फसीहा अपनी तरफ आती नजर आई। लाई कुछ बर्तन वगैरह साफ़ करने हो तो मैं कर दूँ। इसने अंदर आकर अपनी खिदमत पेश की। वो घर के कामों की इतनी शौकीन तो नहीं थी, मगर दीबा को अकेले लगा देखकर कुछ ना कुछ हाथ ज़रूर बटा दिया करती थी। क्या हुआ? दीबा ने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए सवालिया निगाहों से देखा। फसीहा इसकी संजीदगी पर कहकहा मार कर हंस पड़ी। जो हमेशा होता है, अब ऐसा करो, फ़ोन करके निहाल भाई को बुला लो तो तुम बड़ी दर्द सरी से बच जाओगी। क्यों गुस्सा दिलाती हो तुम इन्हें? सारे घर का माहौल ख़राब होकर रह जाता है। कितनी बार तुम्हें समझाया, बेबी से खफा थी तो थोड़ा सा इन्हें भी तो समझाओ। कितनी गलत बातें कर रही थी, देख लेना। अम्मा को चढ़ा चढ़ा कर बेचारे अनवर भाई का यहाँ कुछ दिन रहना अजाब करेंगी। वो अलग बात है, मगर तुम्हें निहाल भाई का जिक्र छेड़ने की क्या ज़रूरत थी, वो भी इतने गलत अंदाज में। बाजी तुमसे कितना बड़ी है, इसका भी तुम्हें लिहाज नहीं? दीबा ने फ्रूट सलाद का प्याला फ्रिज से निकालते हुए कहा। अच्छा चलो, मेरी ही गलती है। फसीहा एकदम संजीदा हो गई। मगर दीबा जी, सच कहना, बाजी का इस तरह निहाल भाई के साथ घूमना फिरना, तोहफे तहई वसूल करना अच्छा है क्या? अभी दीबा इसको कोई जवाब देने नहीं पाई थी कि बदर भाई खाना निकालने का कहने चले आए। आप चलें भाई, मैं वहीं आपके कमरे में पहुंचा देती हूँ। फसीहा ने उन्हें मुतमईन करके दरवाजे से ही लौटा दिया। फिर दीबा की तरह मुड़ते हुए बोली, मुझे तो कसम से अम्मा और बदर भाई पर हैरत होती है, जो इन्हें मना नहीं करते। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों में तो ये बातें ज़रा काबिल इतरा समझी जाती हैं। देखो, अव्वल तो निहाल भाई बाजी के बचपन के मंगेतर हैं, फिर सगे खालाजात हैं, कोई अजनबी नहीं। शुरू से ही वो दोनों एक दूसरे से फ्री हैं, इसलिए किसी को महसूस नहीं होता। दीबा ने खाना निकालते हुए फसीहा की जानिब से पुश्त किए हुए जवाब दिया। हाँ, अगर कोई अजनबी होता उनकी जगह, या फिर इन दोनों की मंगनी भी हुई होती, तो फिर तो मेरे ख्याल में शुबाना बाजी खुद ही एहतियात करती। फसीहा के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। वैसे तुम वकालत अच्छी कर लेती हो। बाजी को तो अपने हक़ में एक भी दलील देनी नहीं आती, बस रो पीट कर दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देती हैं। अच्छा बस करो, ये ट्रे बदर भाई के कमरे में पहुंचा दो। मैं जाकर शुबाना बाजी को मनाती हूँ ताकि हम सब भी खाना खा लें।
दीबा अब इस मौजू को तब्दील करना चाह रही थी। फसीहा ने ट्रे उसके हाथ से लेकर बाहर जाने को कदम बढ़ाए। दरवाजे से निकलने से पहले वो लम्हा भर को रुकी और दीबा की तरफ मुड़ते हुए बड़े अजीब से लहजे में बोली, दीबा जी, तुम्हें वाकई में लगता है कि खाला जान बाजी को बहू बनाकर ले जाएंगी? इतना कहकर वो रुकी नहीं। दीबा के जवाब का इंतज़ार किए बगैर तेज़ कदमों से बाहर निकल गई। दीबा साकित सी हो गई। कितनी सफाई से बेबी ने वो सवाल पूछ लिया था जो अम्मा और बदर भाई अपने आप से करने से भी घबराते थे। बचपन में ज़रूर खाला जान ने बड़े चाव से भांजी को बहू बनाने का ऐलान किया था और अगले चंद बरसों में अपने इस नए कायमशुदा रिश्ते की पासदारी का इजहार भी करती रही थी। मगर अब पिछले कई सालों से इस मौजू पर तवील खामोशी अख्तियार किए हुए थी। एक सिर्फ निहाल भाई का मुसलसल झुकाव उम्मीद को बरकरार रखे हुए था और बस पिछले कई सालों से वो शुबाना के लिए अलग से ईदी वगैरह लाने का तकल्लुफ़ भी ख़त्म कर चुकी थी। अम्मा और बदर भाई की निहाल भाई के लिए इंतहाई एहतमाम से लाई जाने वाली ईदी के जवाब में वह ईद के रोज़ खड़े खड़े आती और शुबाना बाजी के हाथ में 1000 रुपये का नोट रखकर जिता देती कि तुम चारों बहन भाइयों की ईदी आपस में बांट लेना, और फिर ये जा और वो जा। सईदा बेगम और मेज़ पर सजे लवाजमात उनकी नज़र करम के मुंतज़िर ही रह जाते, मगर वो हमेशा इतनी जल्दी में होती, पलक झपकते में सारा किस्सा निमट जाता था। उनके इस रवैये ने ही गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा की थी, जिसका इजहार अभी फसीहा किए गए सवाल से हो रहा था। निहाल भाई तो बहुत चाहते हैं शुबाना बाजी को, यकीनन खाला जान को भी राज़ी कर ही लेंगे। ट्रे में बर्तन सेट करती दीबा जैसे अपने आप को तसल्ली देती रही, मगर ये शायद इतना आसान नहीं था। जहन में उठते हुए बेशतर सवालों के जवाब इसके पास नहीं थे। फ़िलहाल तो इसे शुबाना बाजी को मनाना था, इसलिए मज़ीद वक्त ज़ाया न करते हुए उनके कमरे की तरफ चली आई। एकदम ही कुछ गर्मी सी महसूस होने पर अनवर ने किताब से सर उठाया। चारों तरफ धूप पूरी तरह फैल चुकी थी। दिन के पहले पहर में जो हल्की हल्की नरमाहट धूप में महसूस हो रही थी, अब वो बाकी नहीं रही थी। अनवर ने इधर उधर देखा और ज़रा फासले पर लगे आम और चीकू के दरख्तों के नीचे कुर्सी लेकर चला गया। वो शायद पढ़ते पढ़ते थक गया था। यूँ ही कुर्सी की पुश्त से सर उठाए दरख्तों का जायज़ा लेने लगा। घने सायादार दरख्त, उदास तन्हा मगर सुकून और बुलंदबारी का एहसास दिलाते हुए अनवर को अपनी ज़िंदगी कुछ इन दरख्तों के मुमासिल ही लगी। अकेला तो अपने चचा के भरे पूरे घर में बरसों से था, जहाँ पर इसे अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद ज़िंदगी के बहुत से साल गुजारने पड़े थे। ये उदासी भरी तन्हाई इसे एक सबक बहुत अच्छी तरह पढ़ा गई थी। ये सबक था सब्र का, जिसे इसने बड़ी मजबूती से थामा हुआ था। माँ बाप जैसी अनमोल हस्तियों को खो देने के बाद अपनी ज़िंदगी की बहुत सी तकलीफ़ों नागवार बातों को हौसले के साथ सह लेने की आदत देखने वालों पर इसके हमा वक्त पुरसकून रहने का तासुर डालती थी। चचा की सदमहरी, चची की इंतहा को पहुंची तंग दिली और उनके बच्चों का तज़हीक आमेज़ रवैया। अनवर को इस वक्त जाने क्यों बहुत कुछ याद आने लगा। शायद इसलिए अभी वो सब कुछ छोड़े बहुत कम दिन गुजरे थे और वो तकलीफ़ दे यादें बहुत ताकतवर थीं, इतनी कि इन्हें भुलाने के लिए एक उम्र दरकार थी। क्या कर रहे हैं अनवर भाई? सामने फसीहा खड़ी थी। सो गए थे क्या? मैंने खामखा जगा दिया? अनवर की बंद हुई आंखों से वो यही समझी थी। वो आंखें खोलकर हल्के से मुस्कुरा दिया, मगर इसके ख्याल की तरदीद नहीं की। ये सीधी सादी सी लड़की जो इसके नज़दीक अभी बच्ची ही थी, इसे बिल्कुल बहनों की तरह लगती थी। आप बहुत मेहनत करते हैं। बदर भाई कह रहे थे कि रात को भी 3-4 बजे तक जागते हैं, फिर शाम से रात तक ट्यूशन पढ़ाने निकल खड़े होते हैं। इसके लहजे में छुपी अपने लिए फ़िक्रमंदी अनवर को बड़ी अच्छी लगी। अपना ख्याल रखा करें अनवर भाई, इस तरह तो खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाएंगे। अरे कुछ नहीं होता मुझे, सारा दिन तो मज़े से एक जगह बैठा रहता हूँ, ना कोई काम ना धाम। भला पढ़ने पढ़ाने से भी कोई बीमार होता है? अनवर को हंसी आ गई। वो इसे भला क्या बताता किन किन सख्त मुकामात से गुज़र कर वो यहाँ तक पहुँचा है, जहाँ जिस्म और रूह दोनों ही थकन से चूर थे। 4 मुलाजमीन के बराबर काम करने के बावजूद अपनी बुनियादी ज़रूरतों की तकमील के लिए वो पहरों चचा चची का मुँह देखता और इनके अच्छे मूड का इंतज़ार करता था। खाना तो आप बदर भाई के साथ ही खाएंगे ना? फसीहा वापस जाने को मुड़ी तो इसने मुस्कुराते सर हिला दिया। बदर भाई का मिलना यकीनन इसके लिए कुदरत का इनाम था। रोज़मर्रा ज़िंदगी के एक इत्तफाक ने इस हिंद से मिला दिया था।
انور کو آج بھی اس بات پر سخت حیرت ہوتی تھی کہ اس جیسے بے مایا شخص میں انہیں ایسا کیا نظر آیا تھا جو وہ یوں اس سے محبت کرنے لگے تھے۔ شروع میں تو اسے ان کی اس بے لوث محبت کو قبول کرنے میں خاصی دقت ہوئی۔ بے مہر موسموں کے اس لمبے عرصے میں مہربانیوں کے سارے رنگ اس کے لیے اجنبی تھے، مگر بدر بھائی تو جیسے ہی فیصلہ کر کے اس کی زندگی میں داخل ہوئے تھے کہ وہ اسے بچ کر کہیں نہیں جانے دیں گے، یوں وہ اس کی زندگی کے ناخدا بن بیٹھے اور اس نے بھی اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ عمر میں وہ انور سے چند سال بڑے تھے۔ ان چند سالوں میں وہ اپنی ہر بات ان سے کہہ لینے کا اتنا عادی ہو چلا تھا کہ جب چچی نے اسے واضح الفاظ میں کہیں اور اپنا ٹھکانہ ڈھونڈنے کو کہا تو وہ بدر بھائی سے چھپا نہ سکا۔ انور کی موجودگی سے ہزار فائدوں کے باوجود چچی اور ان کے بیٹوں کے لیے یہ امر ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا کہ سرکاری اسکول اور کالج سے تعلیم پانے کے باوجود نمایاں کامیابی حاصل کر رہا تھا۔ چچا کی کمائی پر عیش ہو رہے ہیں، جب پیٹ میں روٹی سر پر چھت کا آسرا نہیں ہوگا تب دیکھیں گے۔ چچی اٹھتے بیٹھتے سناتی، ایسا کہتے ہوئے انہیں بالکل بھول جاتا کہ پالنے والی ذات تو صرف اس مالک حقیقی کی ہے، بندے کو تو صرف وسیلہ بناتا ہے۔ کسی دوست کے ساتھ کمرہ شیئر کرنے کا مشورہ کرتے وقت انور کے ذہن کے کسی کونے میں بھی یہ نہیں تھا کہ بدر بھائی سے فوری طور پر اپنے گھر شفٹ کر لیں گے۔ بس ابھی چلو، آفس سے اٹھتے ہوئے تمہارا سامان وہاں سے لے لیں گے، باہر کی طرف کا کمرہ خالی پڑا ہے، تم بڑے آرام سے وہاں رہ سکتے ہو۔ لیکن بدر بھائی یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا، آپ سوچیں تو، آپ کے گھر والے۔ انور کی ہچکچاہٹ بجا تھی۔ کبھی باتوں باتوں میں بدر بھائی سے ذکر کر چکے تھے کہ ان کی والدہ 3 بیٹیوں کی موجودگی میں مالی مشکلات کے باوجود گھر کا کچھ حصہ کرائے پر دینے کے لیے رضامند نہیں ہوتی۔ بس مجھے کچھ نہیں سننا ہے، سمجھے؟ اپنا سامان پیک کرو جا کر، میں کمرے کی صفائی کرواتا ہوں۔ بدر بھائی کے لہجے میں اتنی قطعیت تھی کہ اسے انہیں کنوینس کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ اور سنو، اگر تم نہیں مانتے تو سمجھ لینا، زندگی بھر کے لیے تم سے سخت ناراض ہو جاؤں گا اور اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ ان کی اس دھمکی نے کام کر دکھایا۔ انور حقیقتاً ڈر گیا۔ محبت کی شیریں ذائقہ کو چکھ لینے کے بعد وہ اس سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ سامان اٹھائے رکشہ کر کے ان کے گھر جا اترا۔ اتنا ضرور سوچے ہوئے تھا کہ پبلک سروس کمیشن کے جس امتحان کی وہ تیاری کر رہا ہے، اس میں کامیابی ملے نہ ملے، وہ جلد از جلد کوئی نہ کوئی جاب حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ شام کو ٹیوشن تو بہت پہلے سے میٹرک پاس کرتی پڑھانا شروع کر چکا تھا۔ دیبا، میرا وہ پنک سوٹ تو پریس کر دو۔ شبانہ نے انہماک سے ہاتھوں کا مساج کرتے ہوئے دیبا کو پکارا۔ اپنے ہاتھوں اور پیروں کی خوبصورتی کا بہت دھیان رکھتی تھی۔ لمبی لمبی انگلیوں والے نازک گلابی ہاتھ، جن پر نیل پالش کا ہر شیڈ اچھا لگتا تھا، اتنے نمایاں ہو جاتے کہ دیکھنے والوں کی نگاہ جم کر رہ جاتی تھی۔ اپنے اس خوبی کا اسے اچھی طرح احساس تھا اور اس سے دو چند کرنے کے لیے وہ کوشاں بھی رہتی تھی۔ اچھا رہنے دو، کچھ سوچتے ہوئے شبانہ نے دیبا کو منع کیا، جو کپڑے نکالنے اس کے کمرے کی طرف ہی جا رہی تھی۔ انیکا کا کوئی سوٹ منگا لیتی ہوں، وہ بھی بھیج دے گی، شبانہ نے ٹیلی فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ دیبا کو کچھ اچھا نہیں لگتا تھا روز روز انیکا سے امداد طلب کرنا، اس لیے نہ چاہتے بھی بول ہی پڑی۔ انیکا باجی کو کیوں تکلیف دے رہی ہیں؟ آپ کا پنک سوٹ اچھا بھلا تو ہے، پہلے بھی پہن چکی ہوں نہال کے سامنے، پھر انہیں کا دلایا ہوا ہے، کیا سوچتے ہوں گے صرف انہیں کے دلائے ہوئے کپڑے پہنتی ہوں؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں، اماں بھی بنا ہی دیتی ہیں ہم لوگوں کے کپڑے، بدر بھائی بھی الگ سے پیسے دے دیتے ہیں۔ شبانہ نے تیز نظروں سے جھاڑ پہنچ کرتی فصیحہ کو اس طرح بیچ میں بولنے پر گھورا، مگر کچھ بولی نہیں۔ نہال کے آنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا اور اس بیبی کی بچی کے منہ لگ کر وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ انیکا کا نمبر ملاتے ہوئے اس نے دانستہ فصیحہ کی جانب سے پشت کر لی تھی۔ دیبا نے آنکھ کے اشارے سے فصیحہ کو مزید کسی اظہار رائے سے باز رکھا۔ اچھا ہی ہوا جو میں نے فون کر لیا، انیکا ادھر ہی آ رہی تھی، بس اس کے آتے میں تیار ہو جاؤں گی۔ شبانہ فون بند کرتے ہوئے بتانے لگی۔ ظاہر ہے دیبا جواباً کیا کہتی، یوں بھی وہ گھر میں ایک اچھے سامع کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ یہ موصوف کون ہے؟ انیکا نے اندر آتی دیبا کو کپڑوں کا بیگ تھماتے ہوئے پہلا سوال انور کے متعلق ہی کیا، جسے وہ اندر آتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ ارے یہ انور بھائی ہیں، کمال ہے آپ کو پتہ ہی نہیں۔ فصیحہ نے اس قدر جوش سے کہا کہ دیبا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جیسے گھر کے باقی افراد تو اس بیچارے سے بڑے اہتمام سے ملے تھے۔ وہ سوچتے ہوئے کپڑے لیے شبانہ کمرے کی طرف چلی گئی۔
गो के फसीहा और दूसरे घर वालों को बदर भाई ने अनवर के मुतालिक इतनी ही मालूमात दी थी कि चचा के घर में प्राइवेसी की कमी के बायस अनवर ढंग से इम्तहान की तैयारी नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए इसे अपने पास ले आए हैं। अनवर की वहाँ की परेशानी और साफ अल्फाज में घर खाली करने का जिक्र उन्होंने दानिस्ता नहीं किया था, मगर इन मुख्तसर मालूमात ही को 11 से ज़रब देकर फसीहा ने अनीका को सुनाना शुरू कर दिया था। जब तक दीबा शुबाना को कपड़े देकर और अनीका के लिए चाय बनाकर लाई, अनीका अनवर से पूरी तरह मरूब हो चुकी थी। भाई तुम्हारे अनवर साहब तो बड़ी जीनियस चीज़ हैं, वो दीबा के हाथ से चाय का कप पकड़ते हुए बोली। इसके जुमला में तुम्हारे अनवर साहब के अलावा और कुछ काबिल एतराज़ नहीं था। दीबा झींप से गई। बदर भाई के दोस्त हैं, बहुत गहरे, तुमने जिक्र तो सुना होगा उनसे? हाँ, नाम से तो जानती थी, इतनी तफसील मालूम नहीं थी। यार सच बताओ, ये वाकई बदर भाई के दोस्त हैं? अनीका के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी और पुराने पड़ोसी होने के नाते वो इन लोगों की बेहतरीन फैमिली फ्रेंड थी। क्यों, तुम्हें शक है क्या? हाँ, इसने दीबा के सवाल पर साफ कोई से कहा। बदर भाई किसी को अपने नज़दीक आने की इजाज़त नहीं देते हैं, इनसे दोस्ती करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इसके मुँह से ये बात दीबा को हैरान करके इसके इंतहाई खुश मिजाज भाई के लिए अनीका का तज्जिया कुछ समझ नहीं पाई। गम दुनिया ने इन्हें बेहद सोशल होने से तो रोके रखा था, मगर इनकी खुश दिली के सभी मोतरिफ थे, मिलने जुलने वाले सभी लोग। हैरत है, मेरे ख़्याल में तो इनकी तुमसे भी अच्छी खासी दोस्ती है। दोस्ती नहीं, सिर्फ जान पहचान। अनीका की आंखों में फैलती हल्की सी उदासी लबों की मुस्कुराहट का साथ नहीं दे पा रही थी। जितनी उनकी बराबर वाले मिर्ज़ा साहब, सामने वाले सुभान अंकल या कॉर्नर वाली बेकरी का अशरफ भाई से, इतनी मुझसे भी है। अपने सभी मिलने वालों को एक ही लिस्ट में रखते हैं। अनीका के खामोश होते ही बाहर की खूबसूरत से पहल दीबा को यकीन दिला गई कि अनीका के मुतालिक इसका एक पुराना वहम सिर्फ वहम नहीं है। अपने हुलिया और बातों से खासा जिद्दत पसंद होने का तासुल देने वाली ये लड़की 20वीं सदी के इख्तिताम पर इसे घिसे पिटे बरसों पुराने अंदाज में बदर से मोहब्बत की जा रही थी, जिसका अंजाम सैकड़ों फिल्मों और अफसानों में अलमिया ही दिखाया जाता है। कैसी लग रही हूँ मैं? शुबाना ने बाहर आते बड़ी अदा से पूछा। आजकल वो अपनी चाल ढाल और लुक के लिए किसी मशहूर मॉडल को आइडलाइज कर रही थी। इसका अंदाज़ा इसके सरापे से बखूबी हो रहा था। तुम्हारा ये सूट बहुत अच्छा है, और देखो कितना सही आया है मेरे। वो मालूम नहीं सूट की तारीफ़ कर रही थी, अपनी तारीफ़ करवाना चाह रही थी। बाजी, निहाल भाई आ गए हैं। फसीहा ने इत्तला दी, हालांकि उनकी गाड़ी का हॉर्न सभी सुन चुके थे। बेबी, तुम निहाल को बाहर ही रोक दो, अम्मा से वापसी पर मिल लेंगे, पहले खासे लेट हो गए हैं। शुबाना फसीहा से कहती अम्मा को अपने जाने की इत्तला देने के लिए उनके कमरे की तरफ चली गई। दीबा ने गहरा सांस लिया। शुबाना की हद से बढ़ी खुद परस्ती पर दीबा को कभी कभी रश्क आने लगता था। अपने अलावा इसे कुछ नज़र ही नहीं आता था। निहाल की मजबूत माली हैसियत इसे अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाती थी। बाकी घर वालों के भी कुछ मसाइल हैं या नहीं, ये जानने की इसने कभी ज़रूरत ही नहीं समझी थी। निहाल भाई की गाड़ी जा चुकी थी। चाय का कप खाली करते अनीका भी उठ खड़ी हुई। इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ देर तो बैठो, दीबा ने कहा। इसे अनीका काफ़ी उदास लग रही थी और इस उदास मोड में पहले से ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। नहीं, अम्मी अकेली, फवाद पापा के साथ जिम खाना चला क्या होगा। अब वाकई रुकना नहीं चाह रही थी। अपने अकलौते छोटे भाई की टेनिस प्रैक्टिस के बारे में बताती वो गेट के करीब पहुंची थी कि वहाँ पहले से मौजूद बदर भाई अनवर को देखकर खामोश हो गई। कैसी हो अनीका, बड़े दिन बाद नज़र आई। बदर भाई के अंदाज में वही गर्मजोशी थी जो बकौल अनीका सभी के लिए थी। मैं तो आती रहती हूँ, आप ही घर में मौजूद नहीं होते। अच्छा, वो जवाबन कह कहा मार कर हंसे। मेरा बहुत अच्छा दोस्त, बल्कि भाई ही समझो, अनवर। गायबाना तारुफ तो तुमसे है ही। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से। अनीका फिर से मुस्कुरा रही थी। क्या बदर भाई की मौजूदगी इतनी पावरफुल है अनीका के लिए? दीबा अनीका के मामले में यकीन की आखिरी मंजिल पर अभी कुछ देर पहले ही पहुंची थी, इसलिए उसकी हर हर अदा को नोट कर रही थी। आप यकीनन बहुत कमाल की चीज़ होंगे जिसे इनकी दोस्ती का शर्फ हासिल हुआ। अनीका अनवर की तरफ मुतवज्जा थी। जिन हालात में अनवर ने ज़िंदगी गुजारी थी, इसमें से लड़कियों की तवज्जो हासिल होने का कोई तजर्बा नहीं था। गड़बड़ा कर इस शौक लहजे वाली लड़की की तरफ देखना चाहा तो निगाह इसके बराबर खड़ी दीबा के चेहरे का तवाफ़ करके वापस आ गई। कॉटन के सादा से सूट में मलबूस दीबा।
बदर भाई से अपनी दोस्ती के अव्वलीन दिनों से अब तक इसका दीबा से चंद बार ही सामना हुआ था। हर बार इसकी मौजूदगी अनवर को एक अनोखे एहसास से दो चार करती। इसने कभी अनवर के साथ दुआ सलाम से ज़्यादा बात नहीं की थी, मगर अनवर को इसके अंदाज़ में वही बेसाख्तापन, अपनाइत महसूस होती जो बदर भाई की ज़ात का हिस्सा थी। बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है तुमने, ये बहुत मुख्तलिफ, बहुत प्यारा इंसान है। बदर भाई के कहे जा रहे थे और दीबा गेट पर जमी इस महफिल के बेतुकेपन पर मुस्कुराती। भाई सारी बातें कि यहीं करेंगे, इससे तो अच्छा अंदर आकर बैठ जाएं। हाँ बात तो ठीक है, आओ चलो अंदर बैठते हैं। नहीं बस मैं चल रही हूँ, अम्मी से ज़रा देर के लिए ही कहा था। अनीका को फिर घर याद आया। घर कौन सा दूर है, 2 कदम का तो फासला है, चली जाना थोड़ी देर में। दीबा का दिल चाह रहा था कि बदर भाई भी अनीका से रुकने के लिए इसरार करें, फिर वो देखे अनीका कितनी जल्दी मानती है। मगर वो तो इसके जाने का सुनकर फ़ौरन ही रास्ता छोड़कर खड़े हो गए थे। रस्मन भी इसे रुकने का नहीं कहा था। उनके दिल की गहराई में क्या छुपा था ये पाना वाकई मुश्किल था। अनीका के जाते ही वो भी अनवर के साथ बाहर निकल के घर और घर वालों से शुबाना की दिलचस्पी वाजबी ही थी, मगर आजकल वो घर की आराइश के मुतालिक बहुत पुरजोश हो रही थी। सिटिंग रूम के सोफ़ों से लेकर पर्दों, लाउंज के कारपेट से लेकर कुशन को, हत्ता के दरवाज़ों के आगे पड़े फुटमैट्स तक इसे बिल्कुल फजूल वाहियात लगने लगे थे। घर के साजो सामान में बड़े अरसे से काबिल ज़िक्र इजाफा नहीं हो सका था, मगर बेहतर देखभाल की वजह से इतना भी हाल ख़राब नहीं था जितना आजकल उठते बैठते वो बयान कर रही थी। बच्चों के रसाइल पढ़ने के अलावा दूसरा बड़ा शौक़ जो फसीहा को साल भर पहले से हुआ था वो था कढ़ाई का। ये काम वो बड़े इंहमाक और खुशी से किया करती थी। बड़ी जल्दी इसके हाथ में सफाई आ चुकी थी। सारे घर में इसके बनाए हुए रंग बिरंगे खूबसूरत मैट्स, कुशन, वॉल हैंगिंग सजे हुए थे। इस बार तो इसने सचमुच कमाल ही कर दिया था। बड़ी जांफिशानी से डाइनिंग टेबल कवर बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में काढ़ा था। स्किन कलर के कपड़े पर ब्राउन कलर के हल्के गहरे शेड्स में मुख्तलिफ टाँकों में काम किया था। इसे अम्मा ने भी सराहा था। बदर भाई ने तो तारीफ़ के साथ 100 रुपये भी इनाम में दे डाले थे। शुबाना बाजी, आपको क्या लगा? फसीहा पूछे बगैर रह नहीं सकी। शुबाना ने अब तक कोई तबसरा नहीं किया था। मुझे तो ये टेबल क्लॉथ बिछाने का सिस्टम सिरे से ही पसंद नहीं। क्या मतलब? ऐसी टेबल को खाली पड़ा रहने दिया जाए? वो कुछ समझ नहीं सकी। राउंड शेप में डाइनिंग टेबल ख़रीद लेना, जिसके टॉप पर गिलास लगा होता है। शुबाना ने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बदर भाई को मुखातिब किया। हाँ हाँ भाई, ज़रूर लेंगे, कुछ अरसे रुक जाओ बस। बदर भाई का रवैया हमेशा आस बंधाने वाला होता था। अच्छी भली तो है ये टेबल, खामखा पैसे ज़ाया करने। लकड़ी का फर्नीचर तो हमेशा इन रहता है फैशन में। दीबा को उनकी बचकाना बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। घर के हालात इनसे संजीदा रवैये की तवक्को करते थे। जब इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता तो ऐसी बातों से ख़ुद को तसल्ली दे लेता है, वरना बाज़ार में जो फर्नीचर की इतनी वैरायटी है वो भी हम जैसे इंसान ही ख़रीदते हैं। बदर भाई तीनों बहनों से बहुत मुशफ़िकाना अंदाज में बात करते थे। इन तीनों की हर वो ख्वाहिश जो वो पूरी कर सकते उन्होंने कभी नहीं टाली थी। इस वक्त उनके चेहरे पर साया सा आ गया। हमारे लिए तो यही काफ़ी है, आप निहाल भाई के यहाँ जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लीजिएगा। फसीहा को भाई की आज़ूदगी ने इससे ज़्यादा दुख पहुँचाया जितना इसे अपने टेबल क्लॉथ को मुस्तरद करने का हुआ था। तुम्हारी हर बात में बोलना ज़रूरी है? शुबाना तिल मिलाई। बिल्कुल, बड़ा छोटा दिल है तुम्हारा, अपने टेबल क्लॉथ को इग्नोर करना बुरा लग गया। दीबा ने बड़े दुख से अपनी इस बहन को देखा जिसे अपने रवैये की बदसूरती का एहसास तक नहीं था। शर्म आती है मुझे आपकी बातों पर। कैसी बहन है आप जो अपने सगे बहन भाइयों को नहीं बख्शती? हम जिस हाल में हैं बहुत खुश हैं। हमारी कमाईगी का बार बार एहसास मत दिलाया करें आप। फसीहा की आवाज़ कांप रही थी। कुर्सी के पुश्त को दोनों हाथों से इसने मजबूती से थामा हुआ था। बेबी रिलैक्स बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बदर भाई ने इसे जज्बाती कैफियत से निकालना चाहा। कह लेने दीजिए मुझे। फसीहा की आंखों में आंसुओं की नमी थी। इस घर में कोई कोना इन्हें निहाल भाई के बैठने लायक नहीं लगता। उनकी मौजूदगी मुसलसल ऐसी ही बातें। इससे अब मज़ीद नहीं बोला क्या। आंसुओं को छुपाने के लिए तेज़ी से बाहर निकल गई। इसके पीछे ही दिलजोई के ख्याल से बदर भाई भी लपके। इमोशनल ब्लैकमेलिंग। शुबाना ने कंधे झटके और टेलीफोन की तरफ बढ़ गई। दीबा ने दिल में इसकी बात दोहराई। इससे पहले ही खुद क्या करती आ रही हैं? दीबा ने नए बिछाए टेबल क्लॉथ पर हाथ फेरा जिसे देखकर अभी सही तरह से खुश भी नहीं हुआ था।
शुबाना बाजी अब हंस हंस कर किसी सहेली से फ़ोन पर गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। दीपा रात के खाने के मुतालिक पूछने के लिए अम्मा के कमरे की तरफ चली आई। आज खाला जान के यहाँ मिलाद था। जाना तो शाम को था मगर तैयारियाँ सुबह से जारी थीं। कल शाम उनका फ़ोन आया था जो इत्तफ़ाक़न दीबा ने रिसीव किया था। सरसरी से लहजे में उन्होंने मिलाद का बुलावा दिया और बस, ना इश्तियाक ना इसरार। अपनी आमद की तरह उनका फ़ोन भी मुख्तसर नोयत का होता था। 1 मिनट से भी कम मुद्दत में वो दीबा को भुगता कर फ़ोन बंद कर चुकी थी। शुबाना को मालूम हुआ तो खूब बिगड़ी। तुम्हें अम्मा से तो बात करा देनी चाहिए थी कम अज़ कम। वो अगर कहती तो ज़रूर अम्मा को बुला लाती। ख़ुद तो मैं कहने से रही थी कि अम्मा से भी बात करें। दीबा ने बड़े ज़ब्त से उनके एतराज़ का जवाब दिया। मेरे ख़्याल में अम्मा आप ख़ुद बात करें खाला जान से। शुबाना अम्मा की तरह मुड़ी। उन्होंने मना कर दिया, रहने दो, बस कल हो आएंगे। पता नहीं ये दीबा ने सही तरह सुना भी है या नहीं। सेकंडों में तो इसने फ़ोन बंद भी कर दिया था। मैं तो यहीं बैठी थी। इसका इसरार जारी था। सईदा बेगम अपनी बहन को अच्छी तरह जानती थी। कह तो दिया है कि कल चले जाएंगे। दीबा कोई बच्ची तो नहीं है, उन्होंने कहा होगा वही बता रही है। दीबा का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि अम्मा खाला जान को कॉल बैक करें। उनके इनकार पर इसे बड़ी खुशी हुई। जो जैसे मिले इससे भी वैसे ही मिलना चाहिए, इसका यही ख्याल था। खामखा की अहमियत देना इसे बिल्कुल पसंद नहीं था। शुबाना को खामोश होना ही पड़ा। दीबा का दिल तो नहीं चाह रहा था मगर अम्मा के ख्याल से इसने खाला जान के यहाँ जाने की हामी भर ली थी। फसीहा ने साफ इनकार कर दिया था। इस दिन के वाक़ये के बाद शुबाना से तो इसकी बातचीत ना होने के बराबर ही रह गई थी। दीबा ने ज़ोर देकर 2-4 मरतबा कहा तो इसने बड़े चुपते हुए लहजे में कहा, छोड़ो दीबा बाजी, हमारे पास खाला जान के यहाँ जाने के लायक ना जूते हैं ना कपड़े। हमारी बहन साहिबा को सारा वक्त अपनी हतक का एहसास होता रहेगा। इससे अच्छा है आराम से अपने घर में बैठें। दीबा ने फिर इसरार नहीं किया, बिल्कुल खामोश हो गई। दिल ना चाहते हुए भी किसी काम करने में कितनी कोफ्त होती है, इसका अंदाज़ा इसे खाला जान के यहाँ जाने से पहले की जाने वाली तैयारी के दौरान ही हो गया था। शुबाना बाजी ने ख़ुद तो अपने 4 सूट इस्त्री करने के बाद हस्बे मामूल सबको रिजेक्ट कर दिया था। हमेशा की तरह अनीका ही उनके काम आई। ऑरेंज कलर के जार्जेट पर बने शेडो वर्क के सूट में मलबूस अम्मा और दीबा के सादा से हुलियों पर मोतरिज़ होती रही और दीबा को ऐसे कपड़ों में बालों को ढीली सी पोनी में कैद किए किसी रिसाले में डूबी फसीहा पर रश्क आता रहा। इसकी दोनों ही बहनें अपनी अपनी मर्ज़ी की मालिक थीं। एक वही थी जो हर कदम पर समझौते की आदी हो चुकी थी। जानते हुए चाहते हुए भी बहुत सी बातों पर दिल मार कर वो रह जाती। अपनी कही गई किसी बात किसी अमल से दूसरे के हर्ट होने का ख्याल इसके लिए बहुत तकलीफ़ दे था। खाला जान के बड़े से गेट के सामने रिक्शा से उतरते इन तीनों को निहाल सामने ही खड़े नज़र आ गए। मुझे फ़ोन कर देती तो मैं लेने आ जाता। बड़े इत्तेफाक से वो अम्मा से कह रहे थे। उनके बेहद खूबसूरत घर में दाखिल होते हुए शुबाना के चेहरे पर एक फ़ाखराना मुस्कुराहट थी। बहुत जल्द हासिल होने वाले हक़ की मलकियत के एहसास ने उसके सरापे में ख़ुद एतमादी का एहसास जगा दिया था। दीबा ने दिल ही दिल में बेहद खुलूस के साथ अपनी बड़ी बहन के लिए खुशियों की दुआ की। अपने हिसाब से तो वो लोग खासी देर से आई थी, मगर आकर पता चला अभी तो आधे लोग भी नहीं आए हैं। कुरान ख़वानी जारी थी, वो लोग भी शरीक हो गई। खाला जान के घर वालों में से कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, हालांकि किसी न किसी को वहाँ मौजूद होना चाहिए था। हाल आहिस्ता आहिस्ता भरता जा रहा था। कुरान ख़वानी से फ़ारिग होने तक अच्छी खासी तादाद में औरतें और लड़कियाँ आ चुकी थीं। वो लोग भी सिपारा ख़त्म करके बैठी हुई थी। कुछ देर पहले शुबाना ने कहा भी कि अंदर चलकर घर वालों से मिल लेते हैं। दीबा नहीं मानी थी। आ गए तुम लोग? पता नहीं कहाँ से अचानक खाला जान नमूदार हुई। पूछने का अंदाज़ कुछ ऐसा था कि दीबा को लगा जैसे कहना चाह रही हूँ कि ना आते तो अच्छा था। आजकल वो लोगों के रवैयों और जुमलों में बैनुस्सतूर मायने निकालने में खासी उस्ताद होती जा रही थी। एक निगाह गलत अंदाज दोनों लड़कियों पर डालते हुए उन्होंने अम्मा से पूछा, कैसी हो सईदा? और जवाबन उनका, अच्छी हूँ आपा, सुने बगैर एक बेहद खुशपोश खातून की जानी मुतवज्जा हो गई। इन तीनों को मजबूरन एक दूसरे से निगाह चुरानी पड़ी। काफ़ी औरतें थीं। खाला जान का हल्का अहबाब पिछले सालों की बनिस्बत वसी होता महसूस हो रहा था। महफिल मिलाद के तकद्दुस के ख्याल से ख़वातीन के लिबास में हल्के रंगों से सादगी का तासुर भर रहा था, मगर ये बहुत नफीस और कीमती सादगी थी। खाला जान के मिलने वालों में इनकी क्लास नुमाया थी। कोई मानूस शक्ल दिखाई न देने पर वो लोग बेचैनी सी महसूस कर रही थी। भला ये भी कोई बात हुई
कहीं जाकर इंसान सिर्फ अपने घर वालों के साथ ही बैठा रहे। ख़ानदान के जो गिने चुने घर इस शहर में थे, इन्हें खाला जान दूर के रिश्तेदार कहकर मिलना जुलना तर्क कर चुकी थी। अचानक ही दीबा को खाला की बड़ी बहू के घर वाले अंदर दाखिल होते नजर आए। इन लोगों ने भी इन्हें देख लिया था। इनकी दोनों छोटी बेटियां बड़ी अच्छी आदत की थीं। कभी कभार कहीं मुलाकात हो जाती तो दीबा को इनसे मिलकर हमेशा खुशी होती। इस वक्त भी इसने इन्हें देखकर मुस्कुराकर विश किया। वो लोग भी शायद वहाँ अजनबियत महसूस कर रही थी। फ़ौरन खिंची चली गईं। दोनों बहनें नादरा और तहमीना अपनी वालदा के साथ थीं। दुआ सलाम के बाद वक्ती तौर पर खामोशी छा गई कि मीलाद की महफिल अभी जारी थी। दुआ से फारिग होकर वो लोग ज़रा खुल कर बैठी। दीबा देख रही थी कि खाला जान के घर वालों ने नुज़हत भाभी के घर वालों से रस्मन भी मिलने की ज़रूरत नहीं समझी थी। उनकी अम्मी बेचारी खुद ही कहीं से ढूंढ ढांढ कर खाला जान से मिल आई थी। नुज़हत भाभी अलबत्ता गाहे बगाहे चक्कर लगा रही थी। खाना खासी देर में लगा। इतनी देर में वो लोग सभी मौज़ूआत पर बात कर चुकी थी। फसीहा का ना आने का फ़ैसला कितना दुरुस्त था। खाला जान की बेटियों का पुरगरूर अंदाज दीबा के लिए कोफ्त का एहसास बन रहा था। शुबाना बाजी खामखा ही उनके साथ लगी लगी फिर रही थी। बचपन की मांग है शुबाना। सईदा बेगम नुज़हत भाभी की वालदा को मुतासिर कर रही थी कि इस शानदार घर की अकली हकदार उनकी बेटी है। बचपन में ही आपा ने निहाल से बात तय कर दी थी। दीबा ने इन लोगों की निगाहों में वाज़े तौर पर हैरत की लहर दौड़ते हुए देखी। लेकिन नुज़हत बाजी तो कह रही थी कि तहमीना के बेख्तियार बोल पड़ने पर नादरा और इसकी अम्मी दोनों ही बौखला गईं। वो और बात थी, तुम बीच में मत बोला करो। इनकी वालदा के लहजे में नुमायां सख्ती थी। तहमीना बेचारी यूँ सबके सामने टोके जाने पर शर्मिंदा सी हो गई। दीबा ने इसकी कैफियत महसूस करते हुए बात का रुख मोड़ दिया। लेकिन अपनी अपनी जगह दीबा और अम्मा दोनों ही सधूरी बात से मायने अक्स करती रहीं। अम्मा, बहुत देर हो गई है, यहाँ तो रिक्शा भी मुश्किल से ही मिलेगा। दीबा की तशवीश बजा थी। लेकिन अम्मा अभी तक इसी खुशफहमी में थी कि बहन के पोर्च में बैक वक्त खड़ी 3 गाड़ियों में से कोई एक उनके काम आ जाएगी, इसलिए मुतमईन दिखाई दे रही थी। बहरहाल जाना तो था ही। खाला जान से जाने का कहने के लिए दीबा खड़ी हो ही गई। नुज़हत भाभी के घर वालों को उनके दामाद पहुंचाने जा रहे थे। वो खुश मिजाज अफजाल भाई खाला जान के घर में सबसे ज़्यादा तुक्के इंसान नज़र आते थे। मैं इन लोगों को छोड़कर आता हूँ, फिर तुम्हें भी पहुँचा दूँगा। थोड़ी देर रुक जाओ। अफजाल भाई ने बहुत इसरार से शुबाना और दीबा से कहा, लेकिन दीबा और शुबाना दोनों ही को इन्हें तकलीफ़ देना ठीक नहीं लगा। एक तो उनके ससुराल अच्छी खासी दूर थी, आने जाने में काफ़ी वक्त लगता था। दूसरे निहाल भाई सामने खड़े बज़ाहिर फारिग नज़र आ रहे थे। शुबाना उनकी तरफ चली गई। अम्मा अभी खाला से कह ही रही थी कि उन्हें घर पहुँचाए जाए। निहाल भाई शुबाना के साथ आते नज़र आए। निहाल, इधर आओ। दीबा और खाला जान की नज़र बैक वक्त इन दोनों पर पड़ी थी। कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ये ज़रा मिसेज़ मुशर्रफ को तो इनके घर तक छोड़ दो, बेचारी कब से तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हैं। खाला जान ने तेज़ी से कहा। लेकिन अम्मी, मैं तो खाला वगैरह को लेकर जा रहा हूँ। निहाल ने हिचकिचाते हुए पहले वालदा मोहतरमा फिर शुबाना की तरफ देखा। सईदा को तो मैं ड्राइवर के साथ भिजवा देती हूँ, बस तुम अब देर मत करो, गाड़ी निकालो। उनके फ़ैसला कुन अंदाज पर निहाल ने बेचारगी से शुबाना की तरफ देखा। वो अपनी माँ से हद दर्जा दबते थे। खामोशी से मुड़ गए। अगर कहीं वाकई खाला जान ने अपना फ़ैसला बदल दिया तो निहाल भाई तो शुबाना बाजी के लिए ज़रा भी स्टैंड नहीं ले सकेंगे। दीबा ने फ़िक्रमंदी से शुबाना की तरफ देखा। इसने भी शायद बहुत महसूस किया था। चेहरे पर छाई सुर्खी गवाही दे रही थी। खाला जान ने उन्हें वहाँ से रुखसत करने में देर नहीं लगाई। गाड़ी में खामोशी ही छाई रही। खाला जान के घर से खासा आगे आने के बाद एक पर रौनक सी सड़क पर एक खाली गुजरती हुई टैक्सी को हाथ देते ड्राइवर ने गाड़ी साइड में रोकी। वो लोग कुछ समझ नहीं पाए। बेगम सादा ने कहा था कि आगे से आप लोगों को टैक्सी करा दूँ, अब आप इसमें बैठ जाएं। शुबाना की तरफ का दरवाज़ा खोलकर इसने मौदबाना तरीके से उन्हें हुक्म दिया। शुबाना ने पलटकर अम्मा और दीबा को देखा। लम्हा ज़ाया किए बगैर तेज़ी से उतर गई। बात शायद इतनी बड़ी नहीं थी। खाला जान और इनके घर वालों के अभी कुछ देर पहले मुलाहिज़ा किए जाने वाले रवैये की तनाजुर में बहुत हताकामेज़ लगी। रास्ते भर तीनों में से किसी ने भी कोई तबसरा नहीं किया, हत्ता कि अम्मा ने भी। ये खामोशी बड़ी बोझल महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा। दीबा का दिल चाह रहा था कोई तो इस बोझ को हल्का करे, और कुछ नहीं तो अम्मा।
खाला जान को बुरा भला ही कहते हैं, उनके नाजेबा रवैये पर 10 बातें सुनाते, या फिर शुबाना बाजी ही कुछ कहें। वहाँ मौजूद ख़वातीन और लड़कियों के लिबास पर कोई तबसरा, निहाल भाई के हवाले से कोई दिलचस्प बात या कुछ भी, मगर इसी खामोशी में घर आ गया। शुबाना तो तेज़ी से अंदर चली गई, मगर दीबा को टैक्सी का किराया अदा करती अम्मा के लिए थोड़ा रुकना पड़ा। कंपाउंड में नीम अंधेरा था, मगर अनवर के कमरे की लाइट जल रही थी। खाला जान के घर की रोशनियों के मुकाबले में उसे अपने घर का नीम तारीख कंपाउंड बहुत सुकून आमेज़ लगा था। सुबह को नाश्ता की तैयारी के लिए बावर्ची खाने में कदम रखती दीबा पल भर के लिए रुक सी गई। तबीयत तो ठीक है शुबाना बाजी, इतनी सुबह कैसे उठ गई? बस आँख खुल गई, तुम भी चाय पी लो, अभी बनाई है। दीबा इतने सालों से अकेली घर संभाल रही थी, कैसे शुबाना का इस तरह से कहना बड़ा अजीब सा लगा। खुद सबका ख्याल रखती चली आ रही थी, अपने लिए किसी से कुछ करवाने का कभी ख्याल भी नहीं आया था, खुसूसन शुबाना बाजी से। दीबा की हद से बढ़ी सुलहजोई और ज़िम्मेदार तबीयत ने घर में खुद ब खुद सबके मकामात तय कर दिए थे। आप मुझे भी उठा देती, मैं ही बना देती चाय। दीबा ने कप में चाय उंडेलते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या ठेका ले रखा है सबकी खिदमत का? मेरी तो आदतें बिल्कुल ही बिगाड़ दी हैं। उनके अंदाज में एक नामहसूस सी तब्दीली थी। दीबा ने गौर से उनकी तरफ देखा। आंखों की गिर्द हल्की सी सूजन थी, जैसे रात को नींद ही ना आई हो या दिल खोल कर रोई हो। शुबाना बाजी, क्या नींद नहीं आई रात को? दीबा ने सरसरी अंदाज में पूछा। नहीं भाई, रात को तो मैं आते ही सो गई थी। इस कदर थकन हो रही थी कि 2 मिनट भी नहीं लगे सोने में। इसका मतलब है कि इसका दूसरा अंदाज़ा सही है। दीबा को बहुत दुख सा महसूस हुआ। इसने चोर निगाहों से शुबाना की तरफ देखा। वो चाय पीते बड़ी बेनियाजी से एक पाँव हिलाई जा रही थी, जहन यकीनन कहीं और था। दीबा ने फ्रिज से अंडे निकाल कर टेबल पर रखे। शुबाना कुछ चौंक सी गई। लाओ ये प्याज और चाकू मुझे दे दो, मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। दीबा के हाथ से चाकू लेते हुए इसने बास्केट अपनी तरफ सरकाई। ख़ुद को नॉर्मल जाहिर करने की अज़हद कोशिश कर रही थी, मगर भूल रही थी कि घर वाले इसके पिछले रवैये के इस कदर आदी हो चुके हैं कि उनके लिए अब ये बहुत गैर मामूली था। दीबा ने भी जान लिया था गुज़रे हुए दिन ने शुबाना बाजी को जिन हकीकतों से रोशनास कराया है, इसे तस्लीम करना यकीनन बहुत तकलीफ़ दे हो रहा है उनके लिए। अम्मा से अनीका के यहाँ जाने का कहकर वो बाहर आई तो फसीहा और अनवर सामने ही नज़र आ गए। वक्त की जिस कमी का हमेशा शिकार रहती थी, इसी के तहत दीबा ने कतरा कर निकल जाना चाहा था, मगर बेसुध। दीबा जी, इधर तो आओ जल्दी से। बेबी के अंदाज में इतना इश्तियाक था कि इसे मजबूरन रुकना ही पड़ा। ये देखो, अनवर भाई कितने अच्छे प्लांट्स लाए हैं। इधर क्यारी भी बना ली है, कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? इसने बच्चों की सी बेताबी से अपनी बात मुकम्मल की और फिर दीबा से तस्दीक चाहिए। बहुत अच्छे, इसे कहना ही पड़ा। दीबा की पौधों के मुतालिक मालूमात बस यूँ ही सी थीं, मगर रंगीन पत्तों वाले प्लांट्स वाकई अच्छे लग रहे थे। जब ये ज़रा बड़े हो जाएंगे तब देखिएगा इनकी असल खूबसूरती। अनवर बहुत खुश था। दीबा जी, फिर हम लोग शाम की चाय यहीं बैठकर पिया करेंगे, कितना अच्छा लगा करेगा। मैं, तुम, अनवर भाई, बदर भाई और सब। मैं दोपहर से ही यहाँ मेज़ कुर्सियाँ लगा दिया करूँगी। फसीहा की ऐसी मासूमाना फैंटेसी पर अनवर कहकहा लगाकर हंस पड़ा। हंसते हुए इसकी आंखों में पानी उतर आया। दीबा ने कहीं पढ़ा था, जिन लोगों की आंखों में हंसते हुए पानी आ जाए वो हद दर्जा पुरखुलूस तबीयत के मालिक होते हैं। मिट्टी से भरे हुए हाथ लिए सादा से शख्स के चेहरे की चमक इसे इन बात पर यकीन लाने को मजबूर कर रही थी। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं, जैसे मैंने कोई लतीफ़ा सुना दिया? वो नाराज़ हो गई। अरे, मैं तो यूँ ही हंस पड़ा था। अनवर ने हाथ झाड़ते हुए मुस्कुराहट जब्त की। अब देखो ना, जब तक ये सारे पौधे बड़े होंगे तब तक सब कुछ इसी तरह होगा क्या? मतलब भाई, और सबके लिए तो नहीं कह सकता। मैं तो मालूम नहीं कहाँ हूँ, तुम ऐसा करना कि आप भी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं होंगे हमारे साथ, देख लीजिएगा। फसीहा ने तेज़ी से इसकी बात काटी। अनवर ये प्यार भरी दौंस जमाई इस छोटी सी लड़की को एक नज़र देखा। ज़िंदगी में मोहब्बतों को वसूलने का इत्तफ़ाक़ इसे कम कम ही हुआ था। ज़माने की बेनियाजी का अब इसका दरादी हो चुका था कि प्यार का हल्का सा एहसास भी इसे जज्बाती कर देता था। अंदर का खालीपन इतराफ़ में भी फैलता महसूस होता। तुमने सुना नहीं, वो क्या कहते हैं, 1 दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन बलाए जान। मुझे तो यहाँ 20 दिन हो गए हैं। ये तो बदर भाई की मेहरबानी है कि उन्होंने।
वो अपनी बात को अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। इसकी आवाज़ में घुली आंसुओं की नमी दीबा के साथ साथ शायद फसीहा ने भी महसूस कर ली थी। जब ही अपनी आदत के बरखिलाफ वो भी खामोश से हो गई। बेबी, बेबी। बैरूनी बरामदे में खड़ी अम्मा की तेज़ आवाज़ ने खामोशी का दौरानिया पल भर से ज़्यादा चलने नहीं दिया। ज़रा इधर आओ, मुझे कुछ काम है तुमसे। उन्हें फसीहा का अनवर से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था। इस वक्त भी यकीनन उन्हें कोई अहम काम दरपेश नहीं था। इसे वहाँ से हटाना ही मकसूद था। और तुम दीबा, अनीका के यहाँ जा रही थी? जी बस जा रही हूँ। उनके इस तरह जिताने पर दीबा कट के रह गई। अनवर बगैर कुछ कहे पौधे उठाकर क्यारी की तरफ चला गया था। मैं भी आई अनवर भाई, ये कहकर फसीहा अम्मा की तरफ चली गई। अपनी तबीयत के तमाम तल जाहरानापन के बावजूद वो इनके सामने जवाब नहीं देती थी, वरना दिल तो चाह रहा था कि अम्मा के हुक्म को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ाते। गेट से बाहर निकलते दीबा ने पलट कर देखा। अनवर इसी तरह क्यारी पर झुका हुआ था। दीबा का दिल चाहा वापस जाकर इस बेज़रर से शख्स की दिलजोई के लिए कुछ तो कहे, जो इसकी आंखों में छाई कोहर को शफाफ किरणों में बदल कर रखते। कोई हरफ़े तसल्ली, कोई यूं ही सी अपनायत भरी बात। फसीहा और अम्मा बरामदे में नहीं थीं। पता नहीं अनवर ने दीबा की मौजूदगी को महसूस किया था या वैसे इसने गर्दन मोड़कर गेट पर जमी दीबा की तरफ देखा। इसे यूं अपनी तरफ मुतवज्जा होता देखकर दूसरे ही लम्हे गेट पार कर गई। अनवर के लिए दिल में उठते हमदर्दी के जज्बात में कुछ कुछ शर्मिंदगी का एहसास शामिल हो चला था। क्या सोचते होंगे कि मैं गेट पर खड़ी क्यों इनकी तरफ देखे जा रही हूँ? दीबा ने अनीका के घर की बेल बजाते हुए सोचा। अनीका की अम्मी हस्बे आदत बहुत मोहब्बत से मिली। दीबा के सलाम के जवाब में ढेर सारी दुआएं देकर वो सब घर वालों की खैरियत पूछने लगी। कॉटन के सादा से सूट में मलबूस इन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो किसी बड़े बिजनेसमैन की बीवी हैं। दीबा बचपन से ही उन्हें बेहद पसंद करती थी। बहुत साल पहले जब दीबा के अब्बा ज़िंदा थे, इसी वक्त उनके आला सरकारी ओहदे की बिना पर वो लोग भी बहरहाल बराबर के स्टेटस का दावा कर सकते थे। मगर अब इन गुज़रते दिनों में दोनों घरानों के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका था। फसीहा तो अक्सर कहा करती थी, हम लोग अल्लाह की मेहरबानी और बदर भाई की मुलाजमत के बाद अब्बा के बनाए हुए भरम के सहारे ही चल रहे हैं। हालांकि इस बेचारी को तो अब्बा का ज़माना ठीक से याद भी नहीं था। बस कुछ हल्की सी परछाई थी जो जहन के किसी हिस्से में रह गई थी। लेकिन वो बड़े शौक़ और अकीदत से अब्बा की लाई हुई घर की हर चीज़ की देखभाल करती थी। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? इसे यूँ खोया खोया देखकर अनीका की अम्मी ने फ़िक्रमंदी से पूछा तो दीबा मुस्कुराती, कुछ नहीं आंटी। अनीका कहाँ है? सो तो नहीं रही है? नहीं, सोना कैसा, आजकल तो कमरे में बंद रहने का भूत सवार है। उनके अंदाज में बेटी के लिए हल्की सी खफकी जाहिर हो रही थी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इस लड़की का आखिर क्या बनेगा। न कहीं घूमना फिरना, न लड़कियों जैसे कोई और शौक़। एक तुम्हारा घर है जहाँ 2-4 दिन में चक्कर लगा लेती है और बस। वो अपनी बात कहते कहते एकदम ही खामोश हो गई। दीबा की समझ में नहीं आया कि इसे जवाबन क्या कहना चाहिए। शादी के लिए भी तैयार नहीं होती, जो मेरी फ़िक्र कम हो, हर रिश्ते से इनकार है। अनीका की अम्मी ने इसे जवाब देने की जहमत से बचा लिया था। दीबा उनके लिए हमेशा ही एक अच्छी सामे साबित हुई थी। वो इसके करीब खिसकते हुए कुछ राजदाराना सा अंदाज़ अख्तियार कर रही थी। इसके पापा के दोस्त का बेटा है, रेजिडेंसी कर रहा है USA में। वो लोग बहुत ख्वाहिशमंद हैं, बार बार चक्कर लगा रहे हैं, मगर अनीका एक लफ्ज़ सुनने के लिए तैयार नहीं होती। ऐसे में कैसे हामी भरी जा सकती है? आप परेशान ना हो आंटी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दीबा को उनका दिल रखने के लिए कहना ही पड़ा। मैं ज़रा अनीका से मिल लूँ? वो उठ खड़ी हुई। ज़रा तुम ही बात करके देखो, तुमसे तो बहुत दोस्ती है, कुछ मालूम तो हो आखिर इस लड़की के दिल में है क्या। अनीका की अम्मी भी बुड़बुड़ाती हुई उठ खड़ी हुई। उनकी परेशानी महसूस करते हुए दीबा को अपने अंदर खामखा एक एहसास जुर्म जागता नज़र आ रहा था। ज़रा रुकना 1 मिनट। अनीका की अम्मी की आवाज़ पर लाउंज से निकलती दीबा को रुकना पड़ा। ये एल्बम लो, इरफान की अम्मी ने भिजवाया, जिस लड़के की बात कर रही थी मैं। दीबा की सवालिया निगाहों का मतलब समझकर उन्होंने वजाहत की। अनीका को दिखा देना, वैसे अगले महीने के आखिर तक ये ख़ुद भी पाकिस्तान आ रहा है। मैं चाह रही हूँ कि अगर अनीका मान जाए तो कम अज़ कम मंगनी की रस्मी हो जाए। दीबा ने यूँ ही खड़े खड़े एल्बम के 1-2 सफ़े पलटे। खासा खुश शक्ल, स्मार्ट लड़का था। अच्छा है ना? अनीका की अम्मी के इश्तियाक भरे इस्तफसार पर इसने फ़ौरन ही सर हिला दिया। वो खुश हो गई और अनीका को हर मुमकिन तरीके से रजामंद करने की ताकीद करने लगी।
उन्हें इत्मीनान दिलाकर दीबा अनीका के कमरे की तरफ आई। दरवाज़ा नीम हुआ था। हल्की सी दस्तक देकर वो अंदर चली आई। अनीका सामने बेड की पोस्ट से टेक लगाए कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। दीबा को देखते ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मैंने तुम्हें आता देख लिया था, मगर जानबूझकर नहीं आई। मैंने सोचा अच्छा है अम्मी अपना दिल हल्का कर लें, खामखा ही परेशान रहती हैं। इतना ही ख्याल है उनकी परेशानी का तो इन्हें क्यों तंग कर रखा है, मान क्यों नहीं लेती उनकी बात। दीबा बेड पर ही उसके करीब बैठ गई। अनीका ने शायद कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं ख्याल किया। दीबा की गोद में पड़े एल्बम को इसने ज़रा अहमियत नहीं दी थी। खिड़की से आती हल्की सी धूप में इसके खूबसूरत बाल चमक रहे थे। कई लटे रबर बैंड के ग्रिफ्ट से आज़ाद इसके चेहरे के अतराफ़ में झूल रही थी। ये देखो, दीबा ने एल्बम इसकी तरफ बढ़ाया। आंखों के साथ दिमाग से भी काम लो। मैं क्या करूँगी इसका, मना कर तो दिया था। इसके इस बेनियाजाना अंदाज पर दीबा का सर पीट लेने को जी चाहा। बेवकूफ़ी मत करो। दीबा ने एल्बम खोलते हुए इसकी आंखों के सामने किया। हर लिहाज से अच्छे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें। प्लीज़ दीबा। अनीका के लहजे में बड़ी उदासी भरी इल्तिजा थी। यकीन करो, मैं अगर मान सकती ना तो ज़रूर मान लेती, अम्मी के पहली बार कहने पर ही। दीबा को बदर भाई पर ढेर सारा रश्क आया, जो तालीम, स्टेटस और शक्ल तीनों में इरफान के पासंग न होते हुए भी फतह याब थे। फिर अगर मुझे ज़रा सी भी उम्मीद होती दीबा कि मेरी ज़ात से किसी को खुशी मिल सकती है तो मैं अम्मी की खातिर ही शादी करने से कभी इनकार नहीं करती। अनीका ने ज़रा तवक्कुफ़ करते हुए दीबा की तरफ देखा तो वो इसकी आंखों में लिखी तहरीर को बखूबी पढ़ सकती थी। फिर एक तीसरे शख्स की ज़िंदगी को बेकैफ बेरंग करने का मुझे क्या हक़ पहुँचता है, जबकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि। इसकी अधूरी बात अपना पूरा मतलब समझा रही थी। दीबा जानबूझकर अनजान बने रहना चाहती थी। एक भरम बरकरार रखना था, अपना, अनीका का और बदर भाई का, जिनकी तरफ से किसी खुशकुन जज्बे का इजहार दूर दूर तक नहीं था। अनीका उनके बारे में सही कहती थी, वो सबके होते हुए भी सबसे अलग थे। उनके दिल में अनीका के लिए कोई जगह है भी या नहीं, दीबा के लिए इस राज को पाना बहुत मुश्किल था। तीनों बहनों से बेहद मोहब्बत करने वाले बदर भाई ने हमेशा ख़ुद को ज़रा से फासले पर ही रखा था। वही तीनों की फरमाइशें पूरी करते, स्कूल कॉलेज के ज़माने के सारे किस्से दिलचस्पी से सुना करते, मगर अपने मुतालिक कभी बात नहीं करते थे। हत्ता कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों में भी कभी न खुले घर में मुर्ग पुलाव पक्का हो या दाल सब्ज़ी, सर झुकाए एक सी खुशी और रग़बत से खा लेते। ले देकर एक अनवर की ज़ात थी जिसके साथ बंधी उनकी गहरी दिलचस्पी घर वालों पर आश्कार हुई थी। इसके मुतालिक भी उन्होंने जितना मुनासिब समझा बस इसी कदर घर वालों को आगाह किया था। ज़्यादा तफसील में जाने की यहाँ भी ज़रूरत नहीं समझी गई थी, मगर अब मालूम नहीं कौन सी ख्वाब जगाती खड़ी थी जब वो बेवकूफ़ लड़की इतनी दूर खड़े सी लाताल्लुक़ शख्स की तमन्ना कर बैठी थी। दीबा जब से घर आई थी मुसलसल अनीका के मुतालिक ही सोचे चले जा रही थी। इसमें कोई शक नहीं था, अनीका जैसी मोहब्बत करने वाली हसास सादा दिल लड़की का बदर भाई की ज़िंदगी में हिस्सेदार बनना उनकी खुशकिस्मती का मजहर बनता। मगर बदर भाई की ज़िंदगी के अगले 5 साला मंसूबे में शादी का कहीं जिक्र नहीं था। अपने ऊपर आई जिम्मेदारी को बखूबी पूरा करने की धुन उन्हें कुछ और सोचने का मौका ही नहीं दे रही थी। बिल्ली के गले में घंटी बांधने का फरीज़ा इसे ही अंजाम देना होगा। हर पहलू से सोचने के बाद दीबा इसी नतीजे पर पहुंची थी। अम्मा के ज़रिए बदर भाई पर प्रेशर डलवाने का तरीका इसे कारगर होता महसूस हो रहा था। बहुत जल्द इस पर अमल पैरा होने का इरादा बांधकर वो कुछ मुतमईन से हो गई। निहाल आए बैठे थे। उनकी आमद के 40 मिनट बाद तक भी हैरत अंगेज़ तौर पर शुबाना अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। अम्मा के करीब कुर्सी पर पहलू बदलते निहाल भाई की बेचैनी बजा थी। उनका शुबाना के कमरे की तरफ बार बार गर्दन मोड़कर देखना दीबा को ये मंजर बहुत दिलचस्प लग रहा था। एक तो बैठे कुछ ऐसे रुख पर थे कि शुबाना के कमरे का दरवाज़ा उनके इंतहाई बाईं तरफ चला गया था। उन्हें इस मुसलसल मुशक्क़त से बचाने के लिए दीबा का दिल बेसाख्ता चाह रहा था कि उन्हें कुर्सी बदलने का मशवरा दे डाले, मगर इस मजाक पर निहाल भाई से ज़्यादा अम्मा की खफगी का ख्याल इसे बाज रखे हुए था। कुछ तो और लो, खैर से तुम्हारा अपना घर है। लवाजमात से भरी ट्राली से अम्मा कुछ ना कुछ उठाकर निहाल की प्लेट में रखती ही जा रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि आज तुम ज़रूर आओगे, इसलिए लौकी का हलवा बना कर रखा था, तुम्हें पसंद है ना। लौकी के हलवे का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा डोंगे से निहाल की प्लेट में शिफ्ट हो चुका था। मीठा वो कितने शौक़ से खाते हैं इसका अंदाज़ा कोई भी उनके काबिल रश्क सेहत से बासानी लगा सकता था। बहुत मज़ेदार है।
حلوے کا ایک لبالب چمچہ منہ میں ڈالتے ہوئے نہال نے خالہ کی محبتوں کے جواب میں تعریف کرنا ضروری خیال کیا۔ میلاد والے روز کے بعد وہ آج 15-20 دن کے گیپ سے آئے تھے۔ اپنے گھر والوں کے رویے کی بنا پر خاصی شرمندگی تھی، اسی لیے اتنے دن ادھر کا چکر نہیں لگایا تھا، مگر اب اماں کا رویہ ان کا اعتماد بحال کر رہا تھا۔ اور باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ دیبا اس سوال کی بہت دیر سے منتظر تھی۔ اطمینان سے بولی، بدر بھائی تو کہیں گئے ہوئے ہیں اور بیبی سو رہی ہے۔ آج اس کے ایگزام ختم ہوئے ہیں۔ شبانہ کا ذکر اس نے دانستہ نہیں کیا تھا۔ خاطر خواہ معلومات حاصل نہ ہونے پر نہال بھائی انگلی سے کنپٹی سہلاتے اب صاف صاف ہی پوچھ لینے کا ارادہ کر رہے تھے کہ اماں کو خود ہی خیال آ گیا، یہ شبانہ آخر کمرے میں گھسی کیا کر رہی ہے؟ شبانہ، اے شبانہ! انہوں نے اونچی آواز میں پکارا۔ کمرہ اتنا دور بھی نہیں تھا کہ وہاں آواز نہیں سنی جاتی۔ اماں کی تسلی کے لیے شبانہ کو باہر آنا ہی پڑا۔ ایک چٹتی سی نگاہ نہال پر ڈال کر سلام کرتے اماں کی طرف متوجہ تھی۔ جی اماں، آپ نے بلایا؟ ہاں میں نے ہی آواز دی تھی۔ اندر کیا کر رہی ہو؟ باہر نکل کے بیٹھو۔ دیبا کو اماں کا یہ انداز کبھی بھی اچھا نہیں لگا کرتا تھا۔ شبانہ باجی نہال بھائی کی بڑھی ہوئی بے تکلفی کو وہ اسی شے کا نتیجہ سمجھتی تھی۔ میں اپنی الماری ٹھیک کر رہی ہوں، سارا سامان پھیلا ہوا ہے۔ سکون سے اپنی بات کہہ کر فوراً ہی مڑ گئی۔ رکو تو! نہال ابھی تک ہاتھ میں تھمی پلیٹ کو ٹیبل پر رکھ کر بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر کہیں چلنے کا موڈ ہو تو چلو، ابھی میں بھی فارغ ہوں۔ لیکن میں فارغ نہیں ہوں۔ مختصر سا جواب نہال کے چہرے پر نظریں جما کر بڑے سکون سے دیا گیا تھا۔ ہلکے سے رنگ کے سوٹ میں ملبوس شبانہ کی گلابی رنگت میں ان 15 دنوں میں ہلکی سی زردی جھلکنے لگی تھی۔ میرا خیال تھا کچھ شاپنگ وغیرہ کر لیتے۔ نہال شبانہ کی کمزوری سے واقف تھے، اس لیے اسے ہی چارے کے طور پر استعمال کیا۔ مجھے تو کچھ نہیں لینا، آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ موسم بہار کی اس نیم گرم شام میں ہوا سے بکھرتے اپنے بالوں کو سمیٹتے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلا شبہ تینوں بہنوں میں وہ سب سے زیادہ دلکش سراپے کی مالک تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے نہال کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر تیز قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بدلی سی تو پچھلے کئی دنوں سے لگ رہی تھی، مگر دیبا اسے شبانہ کا عارضی موڈ ہی سمجھ رہی تھی۔ نہال بھائی کے گھر والوں کے تضحیق آمیز طرز عمل نے خود اسے بھی کچھ دنوں تک بددل کر رکھا تھا، مگر اپنی درگزر کرنے والی طبیعت کے زیر اثر وہ جلد ہی نارمل ہو گئی تھی۔ رہی اماں تو وہ بھانجے کی شکل دیکھ کر ہمیشہ ہی کچھ اتنی زیادہ خوش ہو جاتی تھیں کہ اگلے پچھلے سارے گلے شکوے بھلا بیٹھتی۔ مگر شبانہ کے لیے اس بار یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ خالہ جان نہال بھائی کے سن گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ان کا ہلکے پن کا یہ مظاہرہ ہمیشہ کے لیے شبانہ کی نظروں میں گر جانے کا سبب ٹھہرے گا۔ تھوڑی دیر تک بے وقوفوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے رہنے کے بعد نہال بھائی اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر آئیے گا نہال بھائی۔ انہیں اس قدر شرمندہ دیکھ کر دیبا کو ان پہ ترس آ رہا تھا۔ خلاف عادت آج وہ انہیں گاڑی تک چھوڑنے چلی آئی تھی۔ اس بات میں سر ہلاتے تیزی سے گاڑی ریورس کر کے گیٹ سے باہر نکالتے چلے گئے۔ سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد رات دیر تک اماں کی پنڈلیوں پر روغن زیتون کی مالش کرتے ہوئے ان کے پسند کے تقریباً ہر موضوع پر ان کا تفصیلی اظہار خیال بڑی دل جمی سے سنتی رہی۔ جب وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، رشتہ داروں کی بے مہری، شبانہ کی نہال سے ممکنہ شادی اور انور کے نامعلوم مدت تک قیام کے خدشے پر دل کھول کر بول چکی، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دیبا نے دماغ میں اٹکے ہوئے اس خیال کو ان کے گوش و گزار کر ہی دیا۔ کیا؟ ان کے انداز میں اس قدر بے ساختہ انداز کی بے یقینی محسوس کر کے دیبا نے اپنی بات کو نئے سرے سے دہرایا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ خیال آیا کیسے؟ انہوں نے دیبا کے ہاتھوں سے اپنے پیر الگ کرتے ٹانگیں سکیڑی۔ کیوں؟ اس میں برائی کیا ہے؟ اتنی اچھی لڑکی ہے نیکا، آپ تو اس کو بچپن سے دیکھ رہی ہیں۔ اکلوتی بیٹی ہے، اماں کا زور اکلوتی پر تھا۔ اپنے اور اس کے حالات کا فرق دیکھا ہے؟ اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا ہے نیکا کے لیے۔ اب بدر کے پاس رکھا کیا ہے سوائے ذمہ داریوں کے جو تمہارے باپ اس کے لیے چھوڑ گئے ہیں؟ ان کے لہجے میں جھانکتا ملال صاف دکھائی دے رہا تھا۔ خود دیبا بھی انہی کی ہم خیال ہوتی اگر انیکا کے جذبے کی گہرائی کو محسوس نہیں کر چکی ہوتی۔ آپ آنٹی سے بات تو کر کے دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے ضرور مان جائیں گی۔ بدر بھائی ان کے دیکھے بھالے ہیں، ہمارا خاندان بھی۔ دیبا کو پتا تھا کہ اپنے موقع پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہنے میں ہی آدھی فتح ہے، اس لیے چن چن کر دلائل دیتی رہی۔ فصیحہ سو چکی تھی، لیکن شبانہ
جو اب رات کو کھانے کے بعد سے اماں اور دیبا کے پاس بیٹھنے کی عادت اپناتی جا رہی تھی، خاموشی سے مذاکرات سن رہی تھی۔ دیبا کے بار بار آپ بھی تو کچھ بولیں شبانہ باجی کے جواب میں اس نے محض ایک بار ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے دیبا کہہ دیا تھا۔ خیر جو بھی ہو، اماں نے حتمی انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ میں شبانہ کی اور تمہاری شادی سے پہلے کسی صورت بدر کی شادی نہیں کر سکتی۔ اچھی سے اچھی لڑکی بھی سسرال میں قدم رکھتے ہی باقی گھر والوں کا پتہ صاف کرنے کی فکر کرتی ہے۔ میرے کون سے 2-4 بیٹے اور ہیں جو میں بدر کے بعد ان کا آسرا ڈھونڈوں؟ اماں یہ تو ناانصافی ہے سراسر۔ شبانہ ان کے خاموش ہوتے ہی بول پڑی۔ لگ رہا تھا کہ اماں کا طرز فکر اسے بھایا نہیں۔ میری اور دیبا کی اگر ابھی 2-4 سال مزید شادی نہیں ہوتی، کیا بدر بھائی کو بھی بٹھائی رکھیں گی؟ خدا نہ کرے۔ اماں کو یہ بات اتنا ہول آ گئی کہ وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سوچ سمجھ کر بات منہ سے نکالا کرتے ہیں، کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے۔ آپ میرا مطلب نہیں سمجھی، میں یہ کہنا۔ اپنے خوبصورت ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے شبانہ سنجیدگی سے اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اماں اب ایک بات سننے کو تیار نظر نہیں آ رہی تھی۔ سب مطلب سمجھتی ہوں، مجھے پڑھانے کی کوشش مت کرو۔ غضب خدا کا! اب اولاد ہمیں عقل سکھائے گی؟ ان کی ناراضگی اتنی معصومانہ تھی کہ شبانہ اور دیبا کو انہیں فوراً ہی منانا پڑا۔ چلو ہٹو، ان دونوں کو اپنے سے علیحدہ کرتے وہ پھر سے مسکرانے لگی۔ شبانہ تو اس سال خیر سے اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ میں سوچ رہی ہوں اب اور دیر کرنا مناسب نہیں، آپا سے بات کر کے تاریخ ٹھہرا لوں۔ اماں کی اس قدر خوش کن ارادے کی بابت جان کر شبانہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ پل بھر کے لیے کچھ سوچ کر اماں کے کندھے سے اپنا بازو اٹھائے بنا ان سے مخاطب ہوئی۔ کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اماں، میرے خیال میں اس معاملے کو آپ ختم ہی کر دیں تو اچھا ہے۔ ہیں کچھ ہوش میں تو ہے کہ؟ اماں کا ری ایکشن قطعی غیر متوقع نہیں تھا۔ شبانہ کی بات ان کے لیے اتنی دھماکہ خیز تھی کہ وہ جتنا بھی کہتی کم تھا۔ اپنے بارے میں ان سے نافرمان، ناشکری، کم عقل، منہ زور، بے شرم کے القابات سن لینے کے باوجود شبانہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ان کی کہی کسی بات کی اس نے نہ تو تردید کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی وہ اپنی بات پہ شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا گناہ کیا تھا جس عمر میں اولاد کی خود سری سامنے آ رہی ہے۔ شبانہ کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر اماں نے دوپٹے کا پلو منہ پہ رکھ لیا۔ شبانہ نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر پہلے اماں پھر امداد طلب نگاہوں سے دیبا کو دیکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی چال میں وقار کے ساتھ گہرا سکون دیبا کو محسوس ہو رہا تھا۔ خود نمائی اور خود پرستی کے خول کے ٹوٹ جانے کے بعد جو ہمدرد باوقار لڑکی سامنے آئی تھی وہ کچھ اجنبی لگنے کے باوجود بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ کم از کم دیبا کو اپنی بہن کا یہ روح بہت انوکھا اور دلکش لگ رہا تھا۔ جو بات بدر بھائی اور انیکا کے معاملے کو سلجھانے کی نیت سے شروع کی گئی تھی وہ بالکل ہی مختلف صورتحال پہ ختم ہوئی تھی، مگر دیبا مطمئن تھی۔ شبانہ باجی کی صورت میں اسے ایک مضبوط حلیف اپنے گھر کے اندر میسر آ چکا تھا جو اس مسئلے کو سلجھانے میں پوری مدد کرنے کو تیار بھی تھی۔ فی الحال تو اماں کو اس رنج سے نکالنا ضروری تھا جس میں وہ شبانہ کے اس ارادے کی جان لینے سے مبتلا ہو چکی تھیں۔ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے دیبا دھیرے دھیرے ان کی دلجوئی کرنے لگی۔ گھر کی فضا میں ایک مسلسل کھنچاؤ واضح محسوس ہو رہا تھا۔ شبانہ اپنی بات پر اس قدر ثابت قدم تھی کہ اس پر کسی چیز کا کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نہال بھائی کے ٹیلی فون وہ بات کرنے سے سختی سے منع کر دیتی۔ ان کے روزانہ شام کی آمد سے وہ اتنا تنگ آ چکی تھی کہ انیکا کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر وہ کمپیوٹر لینگویج کے کورس میں ایڈمیشن کروا کر آئی تھی۔ اب دونوں ہی باقاعدگی سے وہاں جا رہی تھیں، دونوں ہی فرار چاہ رہی تھیں، شبانہ نہال بھائی سے اور انیکا امریکہ میں ریزیڈنسی کرنے والے سے یا اپنے آپ سے۔ اماں شبانہ کی اس خود ساختہ مصروفیت سے جتنی نالاں ہو رہی تھیں، انیکا کی امی اتنا ہی خوش تھیں۔ بقول ان کے لڑکی نے کسی ڈھنگ کے کام میں دلچسپی تو لی۔ ایک شبانہ کی بدل جانے سے گھر کے پرانے اتحادیوں میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ ہر اچھی بری بات میں شبانہ کا ساتھ دینے والی اماں مخالف کیمپ کی سربراہ تھیں اور ان کا ساتھ دینے والے بھی کم اہم نہیں تھے، یعنی بدر بھائی۔ وہ پوری طرح سے ان کے ہم نوا تھے۔ اماں کے ساتھ چھوٹی بڑی نشستیں تواتر کے ساتھ جاری تھیں جن میں اب کبھی کبھی انور بھی شریک ہونے لگا تھا۔ بدر بھائی کی حمایت سے محروم ہو جانے کے خدشے کے پیش نظر اماں نے انور کی مخالفت کے پروگرام کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا تھا۔
اب تو کبھی کبھار وہ ٹہلتی ہوئی انور کے کمرے کی طرف بھی جاتی دکھائی دے جاتی تھی۔ بیچارہ بچہ بڑی محنت کر رہا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ ان کی والدہ کی منہ سے اس جملے کو سنتے ہوئے شبانہ، دیبا، فصیحہ تینوں ہی کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ جاتی تھی۔ فصیحہ اور شبانہ کے درمیان پائی جانے والی رنجش کا اب کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ان کی پچھلی ناراضگیاں کسی بہت پرانے زمانے کی باتیں لگتی تھیں۔ شبانہ نے فصیحہ کو باقاعدہ گلے لگا کر اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ وہ نہال کے بارے میں شبانہ کا فیصلہ سن لینے کے بعد اتنی خوش تھی کہ اگر اب شبانہ اس سے کچھ ایسا ویسا کہہ سن بھی لیتی تو ذرا برا نہیں مناتی تھی۔ ذرا بھی ہمت نہیں ہے نہال بھائی میں، سچ باجی، اگر تمہاری شادی ان سے ہو بھی جاتی تو یہ خالہ جان کے آگے دم بھی مارنے والے نہیں تھے، چاہے وہ تمہاری جو درگت بناتی۔ یہ جملہ فصیحہ قدرے رد و بدل کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ روزانہ ہی دہراتی۔ شبانہ کے واضح انکار نے اماں کو اتنا فکر مند نہیں کیا تھا جتنا پچھلے کچھ دنوں سے نہال کی خاموشی انہیں دہلا رہی تھی۔ ان کے ٹیلی فون آنے تو پہلے ہی بند ہو چکے تھے۔ شبانہ کی بے اتنائی کے باوجود وہ اتنی دور سے ہفتہ بھر میں 2-3 چکر لگا ہی لیتے تھے۔ سعادت مند سے اپنے نزدیک بیٹھے بھانجے کو دیکھتے ہوئے اماں کی نظروں میں زمانے بھر کے لڑکے ہیچ ہو جاتے، لیکن اب یا تو وہ کسی مصروفیت میں گھرے ہوئے تھے یا اس بے کیف مشقت سے اوب گئے تھے۔ بہرحال اماں کی تشویش بجا تھی۔ اپنی تسلی کی خاطر انہوں نے آپا کو پوچھنے کا بہانہ لے کر اوپر تلے کئی فون کھڑکا دیے۔ ایک آدھ بار تو انہیں اپنی بڑی بہن سے رسمی سی توجہ حاصل ہو گئی، مگر اس کے بعد ان کی بیٹیوں کی طرف سے امی گھر پر نہیں ہیں، امی سو رہی ہیں، امی یہ، امی وہ کہہ کر ٹہلایا جانے لگا تو وہ خود ہی شرمندہ ہو گئیں۔ کمال حیرت کا مقام تھا کہ اپنی سگی بہن سے 2 منٹ کی بات کر لینا ان کے لیے جوش لانے کے مترادف ہو گیا، ورنہ یہی بہن تھی جن کا ہاتھ تھامے انہوں نے بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کی منازل طے کی تھی۔ دیکھا جائے تو وقت کتنا آگے نکل آیا ہے، مگر اب تو آج بھی کل ہی کسی بات لگتی ہے جب ننھی سی سعیدہ بیگم اپنے سے 3 سال بڑی آپا فہمیدہ بیگم کی ہمراہی میں مدرسہ میں داخل ہوئی تھی۔ اتنے سارے اجنبی چہروں سے گھبرا کر بڑی بہن سے الگ ہونے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے الگ بیٹھنے کی عادت پڑی تھی۔ یادوں کی نرم دھوپ گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز سعیدہ بیگم کو پوری طرح گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ ایک بار سفید شلوار کے ساتھ ہلکی پیلی چکن کی قمیص اور ہلکا پیلا مکمل ململ کا دوپٹہ ان کے ابا آپا کے لیے لائے تھے۔ قمیص شلوار سی لینے کے بعد آپا نے ململ کے دوپٹے کو ابرک لگا کر بڑی جاں فشانی سے چنا۔ وہ بھی حتی المقدور مددگار تھی۔ یہ وہ دن تھے جب ان کا قد کاٹھ آبا کے برابر آ چکا تھا۔ چنے ہوئے دوپٹہ پر کسے ہوئے دھاگے کھولنے کے بعد جب اسے شلوار قمیص کے ساتھ رکھ کر دیکھا جا رہا تھا تو انہیں وہ کچھ زیادہ ہی بھا گیا۔ تعریف کے کئی جملے ادا کر کے بھی مطمئن نہیں تھی، بار بار ہاتھ پھیر کر دیکھے جا رہی تھی۔ سعیدہ، یہ سوٹ تم رکھ لو۔ پیشکش بہت دل نواز، اتنی غیر متوقع تھی۔ فوری طور پر تو بس منہ کھولے بڑی بہن کا مسکراتا چہرہ ہی دیکھتے رہی۔ جب تمہیں اتنا اچھا لگ رہا ہے تو تم ہی پہن لو۔ ابرک لگا دوپٹہ ان کے کاندھے پر ڈال کر انہوں نے اپنی بات دہرا دی۔ سعیدہ بیگم کی آنکھوں میں ایک دم ہی بہت سارے آنسو امٹ آئے جنہیں انہوں نے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ بڑی بہن کے گلے لگ کر سارے بہا دیے۔ ان کی نوازش سعیدہ بیگم کے دل میں بہن کی محبت کو 1000 گنا بڑھا گئی۔ اس چھوٹے سے واقعے کے بہت برسوں بعد بھی جب زندگی میں کئی لمحے ایسے آئے جب انہیں بڑی بہن کی تکبر بھری بے حسی نے رنجیدہ کیا، مگر وہ چنا ہوا پیلا دوپٹہ ہمیشہ آنکھوں کے سامنے آ کر دل کو سہارا دے جاتا۔ اماں نے چپکے سے دوپٹے سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ سامنے سے بدر بھائی آتے دکھائی دیے، انہی کی طرف آ رہے تھے۔ ہاتھ میں کوئی چمکیلی سی چیز تھامی ہوئی تھی۔ کیا ہے اس میں؟ چمکیلے ریپر میں لپٹے ڈبے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بدر بھائی سے سوال کیا، جو بڑے ڈھیلے سے انداز میں ان کے قریب ہی بیٹھ گئے تھے۔ خالہ جان کا ڈرائیور دے کر گیا ہے، نہال کی بات پکی ہونے کی مٹھائی ہے۔ کیسی بات؟ ان کے سمجھ میں خاک نہیں آ رہا تھا۔ نہال کی بات تو برسوں پہلے شبانہ سے طے ہو چکی تھی۔ بدر بھائی کو ان کی کیفیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے انہیں دلاسا دے کر انہوں نے سر اٹھایا تو خود کو تینوں بہنوں میں گھیرا دے کر چونک سے گئے۔ وہ تینوں اپنے اپنے کمروں سے نکل کر اس سارے معاملے کو سن اور سمجھ چکی تھیں۔ بدر بھائی نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے نگاہیں چرائیں۔ چلو اچھا ہی ہوا، کم از کم اپنے منہ سے یہ سب بتانے کی شرمندگی سے تو بچ گئے۔ انہوں نے جیسے خود کو تسلی دی۔
آپ کو لینا ہی نہیں چاہیے تھا، جب ہی ڈرائیور کو واپس کر دیتے۔ فصیحہ بدر بھائی اور اماں پر گزرنے والی اس واردات کی سنگینی کا پوری طرح ادراک نہیں کر پائی۔ اس کا خیال تھا مٹھائی کا یہ ڈبہ قبول کر کے سراسر اپنی بے عزتی کروائی گئی۔ کسی نے اس کی بات پر تبصرہ نہیں کیا۔ ضرور کوئی اونچا ہاتھ مارا ہوگا خالہ جان کے گھر والوں نے اتنے عرصے سے اسی چکر میں۔ بیبی، شبانہ کے لہجے میں فصیحہ کے لیے تنبیہ تھی۔ اپنی بات پوری کیے بغیر خاموش ہو گئی۔ اگر آپ لوگ میری بات مان لیتے، کم از کم ٹھکرائے جانے کی شرمندگی میرے حصے میں نہیں آتی۔ شبانہ نے اماں یا بدر بھائی کو براہ راست مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر، جس کے رنگ بھی وقت کے ساتھ مدھم پڑتے جا رہے تھے، نظر جمائے ہوئے تھی۔ بہرحال جو ہوا اچھا ہی ہوا، اب کسی کو اس کا سوگ منانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا اتنا کہنا ہی اماں کے لیے کافی ہوا۔ پہلے جو وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھیں، اب بلند آواز میں سسکیاں بھرنے لگیں۔ شبانہ پر ان کے آنسوؤں کا کتنا اثر ہوا، اس کا اندازہ کرنا مشکل تھا کہ اپنی بات پوری کرتے وہ اندرونی کمروں کی طرف چلی گئی تھی۔ شاید اسے خود بھی تنہائی کی اشد ضرورت تھی۔ دیبا کو اماں اور بدر بھائی دونوں پہ رحم آنے لگا۔ سر جھکائے بیٹھے بدر بھائی اس گھر کی خوشیوں سلامتی کے لیے کتنی چھوٹی سی عمر سے ہلکان ہو رہے ہیں۔ اپنے بساط سے بڑھ کر ان سب کا خیال رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اپنے شانے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے وہ چونک گئے۔ دیبا ان کے نزدیک ہی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی پر امید مسکراہٹ ان بوجھل لمحات میں انہیں روشنی کی کسی کرن کی مانند لگی، وسوسے مٹاتی، نئی منزلوں کا پتہ بتلاتی۔ زبان سے ایک لفظ کہے بنا اس کی نگاہوں میں تسلی کا پیغام اتنا بھرپور تھا کہ وہ ایک دم ہی ہلکے پھلکے سے ہو گئے۔ دیبا کو اشارے سے اماں کو سنبھالنے کی ہدایت کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اماں کا غم سوا تھا، خونی رشتوں کے ہاتھوں وہ جس طرح بے وقت ہوئی تھیں، اس پر صبر آہستہ آہستہ ہی آنا تھا۔ لیکن اب وہ مطمئن تھے۔ اپنی بہن کی ساحرانہ صفت کے وہ زندگی میں کئی بار قائل ہوئے تھے کہ وہ مشکل گھڑیوں کو آسان بنا لینے کا فن جانتی تھی۔ اماں بھی یقیناً اس کی اثر انگیزی سے نہیں بچ سکیں گی۔ باہر جاتے ہوئے انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ اماں کے گلے میں باہیں ڈالے وہ دھیرے دھیرے انہیں کچھ سمجھا رہی تھی۔ شبانہ اور نہال کی منگنی ختم ہونے پر رشتہ داروں ملنے والوں کا رد عمل ویسا ہی تھا جیسا کہ عموماً ایسے موقع پر لوگوں کا ہوا کرتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں کے لیے تو گفتگو کا گرما گرم موضوع ہاتھ آیا تھا۔ بہانے بہانے سبھی نے آ کر تصدیق ضروری سمجھی۔ کچھ نے اگر اماں اور شبانہ سے ہمدردی محسوس کی تو بہت سو نے پیٹھ پیچھے نہال کے گھر والوں کی دور اندیشی کی داد دی۔ بیوہ بہن کی بیٹی لانا سراسر گھاٹے ہی کا سودا تھا۔ کچھ دن آگے سرکے، آنے جانے والوں کا چکر ختم ہوا۔ سبھی گھر والوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بار بار ایک ہی قصہ دہرانے سے سبھی بیزار ہو چکے تھے۔ دیبا کو سب سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ شبانہ اس دھچکے سے پہلے ہی خود کو سنبھال چکی تھی، ورنہ اسے سنبھالنا شاید سب سے بڑا مسئلہ ہوتا۔ شبانہ نے پچھلے کچھ دنوں سے انیکا کے جاننے والوں کے اسکول میں جاب کر لی تھی۔ اچھے سٹینڈرڈ کا اسکول تھا، اس لیے تنخواہ بھی اچھی تھی۔ یوں وہ تقریباً سارا دن ہی مصروف رہنے لگی تھی۔ رات کے کھانے کی تیاری میں دیبا اور فصیحہ کے منع کرنے کے باوجود پوری مدد کرتی۔ دیر گئے تک ان کے اور اماں کے ساتھ محفل جمائے رکھتی، مگر اداسی کا ایک مدھم سا احساس اس کا احاطہ کیے رکھتا۔ اسے اس طرح مگن دیکھ کر اماں بھی مطمئن ہوتی جا رہی تھی۔ اور اب جب کہ وہ سب اپنے حساب سے خاص سے سیٹ جا رہے تھے، ایک غیر متوقع خوشی نے ان کے در پر دستک دے ڈالی۔ اماں بدر بھائی کے لیے انیکا کا رشتہ مانگنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ معلوم نہیں انیکا کی دعاؤں میں اتنا اثر تھا یا اماں خود ہی بہو لانے کے ارمان کو مزید نہ دبا سکیں۔ بہرحال وہ تینوں بہت خوش تھیں۔ اصل مسئلہ تو اماں ہی کا تھا۔ ان کے راضی ہونے کے بعد بدر بھائی کو تیار کرنا ان سب کے خیال میں مشکل نہیں تھا، اور ہوا بھی یہی۔ پہلے تو بدر بھائی بہت جھینپے، رسماً انکار بھی کیا، اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں کی سنجیدگی سے آگاہ کرنا چاہا، کسی بھی تعویل میں دم نہیں تھا۔ انیکا کے نام پر ان کی آنکھوں میں روشن ہوتی جوت بہت واضح تھی۔ بدر بھائی کے عالم بے خبری کی شکایت رکھنے والی انیکا کو اگر کوئی بدر بھائی کے دل کی خبر کر دیتا تو وہ شاید خوشی سے پاگل ہو اٹھتی۔ ان لوگوں کی طرف سے رشتہ آنے کی نوید اس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ وہ ان سب کو یوں ایک ساتھ آتا دیکھ کر حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ جب معاملے کی نوعیت پوری طرح سمجھ آئی، کتنی ہی دیر تک اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل پایا، خدا خیر کرے کہیں شادی مرگ کی کیفیت تو نہیں ہوگی۔ دیبا نے شرارت سے مصنوعی فکر مندی ظاہر کی تو وہ زور سے ہنس پڑی، ساتھ ہی بہت سارے آنسو بھی رخساروں پر بہہ نکلے۔
एक हाथ से आंसू साफ करती, चेहरे पर धूप छाँव किसी कैफियत लिए वो इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल से गुजर रही थी। इन तीनों बहनों की फुकराबाजी फ़िलहाल एक शर्मीली मुस्कुराहट के अलावा इसके पास कोई जवाब नहीं था। अभी तो खैर मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं जाने दूंगी, चाहे तुम कोई भी बहाना बनाओ। अम्मा के अंदाज में इतनी कतियत थी कि सामने कुर्सी पर बैठा अनवर बस पहलू बदल के रह गया। अच्छे भाई बने हो जो ऐसे अहम काम के वक्त बिस्तर बांध कर जाने को तैयार हो गए। शादी का मौका है यहाँ और कौन हाथ बटाने वाला है। तुमने भी साथ नहीं दिया तो वही गरीब चारों तरफ दौड़ता फिरेगा। सांस लेने को रुकी, अनवर ने मौका ज़ाया ना होने दिया। बदर भाई की शादी में तो अभी 2 महीने हैं आंटी, मैं इसी शहर में तो हूँ, आप बिल्कुल भी किसी काम की फ़िक्र मत कीजिएगा। कैसे फ़िक्र नहीं करूँ, शहर में रहने का क्या है, इतना बड़ा शहर, खैर खबर रखना आसान नहीं, एक घर में रहने की बात ही और होती है। अनवर की समझ में नहीं आ रहा था इन्हें किस तरह कायल करें। वो तो किसी तौर रियायत देने को तैयार नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि रात इसने बसा दिसरार बदर भाई के गोशो गुजार किया था कि अब जबकि वो नहायत इत्मीनान सुकून के साथ अपना एग्ज़ाम दे चुका है, इसलिए अब इसे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दी जाए। अपने किसी दोस्त के साथ कमरा शेयर करने का वो इंतज़ाम कर चुका था। अम्मी से पूछ लेना, अगर वो इजाज़त दे दें तो ठीक है, वरना फिर तो रुकना ही पड़ेगा। अनवर को उनकी इस बात से खासा इत्मीनान हुआ। लाख अब उनसे इसके मरासिम खुशगवार हो चले थे, मगर अपनी आमद के अव्वलीन दिनों में उनका बेजारी भरा रवैया इसे याद था। भला ज़बरदस्ती के मेहमान को कौन बर्दाश्त करता है। अब तो इससे खासा अपनायत का सलूक करती थी। अनवर इस घराने की शराफत का दिल से कायल हो चला था। यहाँ इसका वक्त बड़े सुकून और इत्मीनान से गुजरा था, जो इस जैसे अपनों के ठुकराए शख्स के लिए किसी नेमत से कम नहीं था। अब वो इन्हें मज़ीद तकलीफ़ देना गवारा नहीं कर पा रहा था, मगर वो जो अम्मा से इजाज़त लेने की फ़ॉर्मेलिटी को यूं ही सा समझकर बड़े इत्मीनान से चला आया था, इसके लिए इजाज़त बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रही थी। रात भर में बदर भाई ने न जाने किस किस जाविये से अपना केस उनके आगे रखा था कि वो इसकी हमनवा बन गई थी। यही वजह थी इस वक्त उसकी एक नहीं चल पा रही थी। मान जाए ना अनवर भाई, किसी का तो कहना मान लें। फसीहा की मुल्तजियाना अंदाज पर अनवर को हंसी आ गई। अपने आप को इतना अहम तो इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। खामखा की ज़िद नहीं करते बेबी, शुबाना ने बहन को टोका। अभी चंद मिनट कबली बाहर से आई थी और इखलाकन अनवर से सलाम दुआ के लिए ठहरी थी। हो सकता है अनवर साहब को यहाँ कोई तकलीफ़ हो और ये मुरव्वतन कह नहीं पा रहे हूँ। अरे नहीं बखुदा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आप सबका बेहद शुक्रगुजार। शुबाना बेहद संजीदा रहने लगी थी। यही संजीदगी इसके लहजे में भी दर आई थी। अनवर इसके सामने कुछ रोब में आ जाता था। बस फिर ठीक है, अभी बदर की शादी तक तो तुम कहीं नहीं जा रहे, बात की बात में देखी जाएगी। अम्मा ने हाथ उठाकर गोया आखिरी फ़ैसला सुना दिया। अनवर के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। एक ठंडी सांस लेकर वो उठ खड़ा हुआ तो निगाह मालूम नहीं कैसे कदरे फासले पर खड़ी दीबा से जा टकराई। अनवर को इसकी आंखों में सुकून खुशी की एक लहर सी महसूस हुई। वहम था यह हकीकत? वो अपना शक दूर करने के लिए इसके चेहरे पर दूसरे निगाह डालने की बेअदबी नहीं कर सका। बदर भाई इसके मोहसिन थे और दीबा उनकी बहन। दिल के लाख चाहने के बावजूद वो इसे नज़र भर कर देखने से भी ख़ुद को बाज ही रखता था, और ख़ुद दीबा की तरफ से भी वो किसी खुशफहमी का शिकार नहीं था। अब 1 घंटा भर से जब वो वहाँ बैठा मगजमारी कर रहा था, कितनी ही बार वहाँ आई, कभी चाय लेकर, कभी अम्मा से कुछ पूछने। मजाल है जो इसने रस्मन सारे मामले में दिलचस्पी जाहिर की हो। जिस बेनियाजी से आती इसी तरह वापस हो जाती। फिर इसे ऐसा क्यों लगा जैसे वो इसके वहाँ रुक जाने के फ़ैसला पर बहुत खुश है। अपने कमरे की तरफ जाते अनवर ने जहन से इस वहम को झटकने की बहुत कोशिश की। दिल को ये खुशफहमी बहुत थी। खुद ब खुद एक मुस्कुराहट होंठों पर बार बार आ रही थी। कभी जो ज़िंदगी मेहरबान हो गई तो इस प्यारी सी लड़की से बेहतर शायद कोई दूसरा ना हो। उम्मीद की रोशन किरण को थामे वो ख़ुद को मुस्तकबिल के ख्वाब देखने से बाज नहीं रख सका था। अनवर के कमीशन पास करने की खबर इसके चचा तक भी पहुंच गई थी। 8 माह से भेजे भतीजे की सोई हुई मोहब्बत एकदम ही जाग उठी थी। न जाने कहाँ कहाँ से पता लगाते हुए इस तक पहुंच ही गए। इत्तफाक से सभी घर वाले मौजूद थे। बाहर पड़ी कुर्सियों पर शाम की चाय का दौर खासे एहतमाम के साथ जारी था। अनीका ने इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए केक बेक किया था। दूसरे भी कई लवाजमात तैयार किए थे। इसकी शादी को अब 1 महीना होने को आ रहा था। इतने से दिनों में ही इन सब लोगों को अंदाज़ा हो चला था कि वो इस घर के लिए किस कदर ज़रूरी थी।
सारा माहौल हैरत अंगेज़ तौर पर खुशगवार रहने लगा था और वो खुद किस कदर निखर गई थी। अच्छी तो पहले भी लगा करती थी, अब तो इस पर निगाह नहीं ठहरती थी। एक ख़ास चमक इसके सरापे में हर पल महसूस होती थी। इस इंतहाई खुशगवार माहौल में जब केक का बड़ा सा टुकड़ा मुंह में रखती अम्मा अनीका से मशवरा कर रही थी कि आया अनवर की कामयाबी पर शुक्राने के तौर पर इस जुमा को घर पर मिलाद की महफिल मुनक्किद कर ली जाए। और इस मोहब्बत भरे इजहार पर अनवर का दिल हसास ममनूनियत से भर आ रहा था कि इसके आली मर्तबा चचा की तशरीफ़ आ गई। मुझे तो पहले ही मालूम था मेरा भतीजा ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। आखिर ख़ानदान का असर तो आना था। यहाँ से वहाँ तक एक से एक काबिल लोग भरे हैं। वो किसी दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। अहले खाना को अनवर के तारुफ के बावजूद ज़रा भी लिफ्ट कराने के मूड में नहीं थे। ऐसी भी क्या नादानी, अपना घर होते हुए गैरों के यहाँ पड़े हो। देखो तो क्या हालत बन गई है। मुझे तो तुम काफ़ी बीमार लग रहे हो। उन्होंने लहजे को हत्तल मकदूर तशवीशनाक कर लिया। खैर अब तो कोई फ़िक्र की बात नहीं, अपने घर चलो। तुम्हारी चची तो बेचारी सुबह शाम तुम्हें याद करती हैं। ज़रूर याद करती होंगी। उनके हिस्से का आधे से ज़्यादा काम तो मैं ही किया करता था। इन्हें तो मेरी कमी यकीनन महसूस होनी थी। उनकी लंबी तकरीर के बाद अनवर को ज़ब्त का दामन छोड़ता महसूस हो रहा था। अरे भाई, काम का क्या है, घर के काम में हिस्सा लेने से तो आपस में अपनायत बढ़ती है। दर हकीकत तो सभी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आखिर इतने बरसों का साथ है। चचा इसके तंज को भांप कर कुछ खिसिया गए। अनवर के लबों पर उनकी तवज्जो एक तल्ख मुस्कुराहट फैला गई। गुज़रे बरसों की कई बातें पल भर में दिल को बहुत कुछ याद दिला गई। घर के अंदर बाहर के बेशतर काम निपटाने के बावजूद पेट भर कर खाने के लिए चची का मुंह तकता था। सारे घर के खा लेने के बाद खाने के नाम पर जो बचा खुचा इसके हिस्से में आता, इसके लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता। चिलचिलाती धूप में खासे फासले पर वाक़ अपने सरकारी स्कूल में पैदल ही आता जाता रहा। चचा अपने तीनों बेटों को बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में ख़ुद गाड़ी से छोड़ने लाते रहे, मगर सड़क पर तेज़ तेज़ चलता हुआ इन्हें कभी नज़र नहीं आया। इम्तहान के दिनों में इसका कितना दिल चाहता था चचा इसे स्कूल छोड़ दें या कम अज़ कम बस का किराया ही दे दें ताकि इसे थोड़ा सा वक्त मिल जाए, मगर इसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी। चची बाहर के कामों के लिए इसके 10 चक्कर लगवाया करती। उनके बेटों की स्पोर्ट्स साइकिलें यूं ही पोर्च में खड़ी रहती। ये आजकल के बच्चे तो ज़रा ज़रा सी बात पर घर छोड़ देने पर मिल जाते हैं। वरना चचा की आवाज़ उसके आसाब के लिए इम्तहान साबित हो रही थी। अनवर को ऐसा लगा कि अगर वो ज़रा देर और इसके सामने रहे ख़ुद पे काबू खो बैठेगा। चचा आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। बदिक्कत इतना ही कह सका। लम्हे भर के लिए एक सन्नाटा सा छा गया। इसके लहजे में छुपी बेमुरव्वती घर वालों को भी चौंका गई। बदर भाई के अलावा कोई भी इसके हालात की संगीनी से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं था। क्या मतलब है, ऐसे कैसे चला जाऊँ? मेरा मतलब है आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। अनवर ने उनकी बात तेज़ी से काटी। मैं कोई गुस्ताखी नहीं करना चाह रहा। बेहतर होगा आप यहाँ से फ़ौरन चले जाएं। अब चचा को समझने में देर नहीं लगी कि बरसों जिस ज़मीन में उन्होंने कांटों की फसल बोई है, वहाँ से अपने लिए किसी गुल की ख्वाहिश करना अबस ही होगा। अपनी नाकामी की झुंझलाहट उन्होंने बकिया लोगों पर उतारनी ज़रूरी समझी। बकौल उनके अनवर को वरगलाने में पेश पेश थे और इसे अपने सगे खून से हमेशा के लिए जुदा करना चाह रहे थे। मैं तो आते ही भांप गया था। जिस घर में एक छोड़ 3 जवान लड़कियां हूँ, इस जैसे काबिल लड़के को क्यों हाथ से जाने देंगे। वो गाड़ी की खिड़की से सर बाहर निकालकर ज़ोर से चिल्लाए। तेज़ी से गाड़ी बाहर निकाल गए। उनका ये हमला बिलाशुबा बहुत कारी था। अनवर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नज़र उठा सके। अम्मा की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, मैं तो तुम्हें अपने बेटे जैसा समझती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बेटे जैसा समझती हैं, बेटा ही बना लें। ज़िंदगी की नुमायाँ कामयाबी इसकी शख्सियत को पुरएतमाद बना रही थी। जुमला मुख्तसर ज़रूर था, मतलब वाज़ेह था। सब पर ही इसकी बात का अलग अलग असर हुआ था। अनीक और फसीहा के लबों पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट दौड़ी थी। तो बदर भाई कुछ गड़बड़ा से गए थे। इस तरह जज्बाती होकर जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत करो। अम्मा तो यूं ही ज़रा सी बात पर दिल छोटा कर जाती हैं। बदर भाई को ख्याल गुजरा कि अम्मा के आंसुओं से मुतासिर होकर वो ये पेशकश कर बैठा है। मैंने बहुत सोच समझ कर ये बात कही है बदर भाई। हाँ, अगर आप मुझे इस काबिल नहीं समझते तो वो और बात है। वो दिल गिरफ्तार अंदाज में वहाँ से उठने लगा तो अम्मा ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बैठने का इशारा किया। नहीं बेटा,
आज इस वक्त से तुम मेरे लिए वही हैसियत अख्तियार कर गए हो जो बदर की है। शुबाना के लिए तुमसे बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता है, मुझे मंजूर है। मगर अम्मा, लोग क्या कहेंगे? अनवर के चचा तो पहले ही। कहने दो, जिसकी जो मर्ज़ी आता है, मैंने फ़ैसला। बदर भाई अम्मा को मुमकिन ख़दशात से आगाह करना चाह रहे थे। इस वक्त सिर्फ एक माँ बनकर सोच रही थी किस कदर खुदगर्जी के साथ। शुक्र है मेरे मालिक का जिसने ये इतनी बड़ी फ़िक्र दूर की। सब आवाज़ें अनवर के कानों में गूंज रही थी। इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि बात यूं हाथ से निकल जाएगी। वाकई जल्दी कर बैठा था। अनीका और फसीहा इसे मुस्कुराते छेड़ रही थी। अनवर इन लोगों की गलतफहमी दूर करना चाह रहा था। इन्हें बताना चाह रहा था कि इसका गौहरे मतलूब कौन है। शुबाना इस हंगामे से बचकर अंदर जा चुकी थी। प्लीज़ मेरी बात सुने। अनवर ने होंठों पर ज़ुबान फेरते हुए हिम्मत कर ही डाली। आपकी बात बाद में सुनी जाएगी, पहले ये लें। केक का पीस इसकी तरफ बढ़ाते दीबा ने इसकी बात काट दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीबा ने इतनी आहिस्तगी से कहा कि सिर्फ अनवर ही सुन सका। पहली बार वो इसके नज़दीक आई थी। अनवर ने निगाह उठाई तो वो इसकी तरफ देख रही थी। पहली बार इसने अनवर से निगाह चुराने की ज़रूरत नहीं समझी। इसके चेहरे पर बला का सुकून था। आँखों में एक नर्म मुलायम सी रोशनी फैलती महसूस हो रही थी। एक सरखुशी और मान की कैफियत थी। अनवर को लगा जैसे वो इसे मज़ीद कुछ भी कहने से साफ साफ मना कर रही हो। वो इन निगाहों को पढ़ने में गलती नहीं कर सकता था। अब इस खुशी में चाय का एक और दौर चलना चाहिए। दीबा के ऐलान पर अनीका, फसीहा और बदर भाई की मिली जुली आवाज़ें उभरी तो मुस्कुराती किचन की तरफ बढ़ गई। एक मुस्कुराहट के साथ अनवर को भी इन लोगों का साथ देना पड़ा। दिल का बोझ कम होता महसूस हो रहा था। वो सब बेइंतहा खुश थे। बाहर की शाम ने बड़ी बेसाख्ता खुशी से नवाजा था। शायद कुदरत को यही मंजूर था। अनवर ने दिल में सोचते हुए समझौते की सीढ़ी पर पहला कदम रख दिया। किसी की ख्वाहिश को एतबार देकर वो ख़ुद को मौत पर पा रहा था। मैं बेखबर नहीं थी। मेरे लिए तुम्हारे जज्बों से अनजान बने रहने में ही आफियत थी। पिछले कुछ दिनों से अम्मा का बार बार बदर भाई से इसरार कि तुमसे शुबाना बाजी के रिश्ते के लिए कहा जाए मुझे मज़ीद मोहतात कर किया। चाय के पानी के पकने के इंतज़ार में खड़ी दीबा सोच में गुम थी। अम्मा के दिमाग में जमे किसी ख्याल को तब्दील करना किस कदर कठिन होता है ये वो अच्छी तरह जानती थी। अब्बा के बाद परेशानियों के एक तवील दौर गुजारने के बाद उम्र के इस हिस्से में खासी ज़िद्दी हो चली थी। अम्मा के दिल को ज़रा सी भी ठेस लगना दीबा को कभी गवारा नहीं हुआ। वो इनकी खिलाफ मिजाज बातें भी आसानी से सह लेती थी। बाहर से आती इन सब की बातों की आवाज़ से चौंका गई। आगे बढ़कर जल्दी से चूल्हा बंद किया तो निगाहों के सामने हर चीज़ धुंधला सी गई। हद हो गई। मेरी ऐसी कौन सी कमिटमेंट थी जो इस तरह? इसने बड़बड़ाते हुए सख्ती से आंखें रगड़ डाली। अम्मा की आवाज़ में खुशी की खनक किसी दिल में उतरती महसूस हुई। चाय के कपों को ट्रे में रखकर बाहर का रुख करती वो दोबारा ख़ुद को नॉर्मल कर चुकी थी। अगले किसी मोड़ पर ज़िंदगी इसके लिए भी यकीनन कोई गैर मुतवक्की खुशी लिए मुंतज़िर होगी। ये खूबसूरत सा नावल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।